So hello everyone. As you know, we are starting this live debate series on some critical topics. Topic for today is Sanskrit. Is it really the world's oldest language? What is the timeline? What is the history behind it? And its evolvement, its evolution, its development. So the medium will be Hindi English mix, and I have with me uh, a great enthusiast on history and these kinds of topic, Nilab Verma. Thank you, Nilab, for joining. Thanks. And yeah, he's from IT background normally, but he has interest in Vedas and scriptures, Hindu scriptures especially. And it will be, I think it will be a very healthy debate. So let's start. Uh, because Nilab is for the motion, he will start with an opening statement, and then I will try to reboot and counter. Thank you, Nilab. Let's start. Okay, so I will start like whenever we say that there's a debate, right? So Yeah, debate always happen when there is a scope of some doubt, yeah, right? So if we have a two statement, we have two statements, and we have some mhm, doubt, right? There we can do the right, debate, right? For the correct. absolute truth that we Hmm. know, okay, this is absolutely right. We cannot have Hmm. debate, right? Right. So now, before I say anything, since you have started this debate, so I would like to ask you, like, since centuries, maybe before that, we all have this conception that, okay, Sanskrit is the oldest language possible, right? If I, ignore from 1917 when the Dravidian movement, started and they came up with the Tamil Sanskrit conflict, now which turned into Tamil Hindi conflict. So, what I'm trying to say it before 100 years there was no conflict for Tamil also between Tamil and Sanskrit, right? So something which we have believed or we are believing since centuries. All of the sudden, why you think that, as you mentioned in the post, that it is only 500 600 years old language, right? So first, let me tell. I mean, you tell me. I mean, why you think that it is only 500 or 600 year old language? Yeah. Yeah, so it's not like I've not claimed that it is 500, 600-year old. The oldest evidence that we have is 600, a bit less than 600 years old, of 1464 AD in India. Globally, we do have a manuscript from 5th or 6th century, I think. It is found in Japan's monastery, and that is that can be seen, but that is also like in the hybrid format. It is not exactly the full-fledged evolved Sanskrit. So we'll take it up. So if you can just put up a claim and give us a timeline, then we can like expand over it and we'll see. But yeah, so the political angle that you mentioned, let's keep the political angle outside and let's just focus on Sanskrit and let's see how it evolved. Because for a language there would be like three elements, right? There will be a Mhm. script, there will be a grammar, and there will be like people speaking it. Okay. I mean, it's region and place. So all three elements. Let's see how, I mean, when Sanskrit would have been like developed and when was like it. Well, what are the timelines? Do we have evidence supporting those timelines? Let's see. And absence of evidence surely does not mean that it is definitely Yeah, not. I was trying to tell you that. Yeah, Yeah. definitely not. Thank you. But yeah, it is like then it will be 50-50. We can also not say that this is that the Mhm. estimated timelines are like all the is not absolute truth as you mentioned, right? So yeah, back Okay, to you. so if we take evidence aside, what do you think? I mean, I'm just talking about your thoughts. I'm not asking for any claim or anything. Hmm. What do you think Sanskrit should be older than that, or newer than that, or what? What is your thought? Yeah, so let me give you the background about my research. Mhm. So what happened is, of course, we have known that Sanskrit is like an a very, I mean, old language. Like people place it at 4,000 years old or even older than that.
We have believed that it is like our this Sanskrit is our language of the devas. It is like really really old. Hmm. And I mean, devas, there is no timeline given in the scientific context. Yeah, right. They are all divine beings. So, but if you see, I mean, if some practicality you can draw out of the scriptures itself, it will be like around 10,000 or 12,000 years old, maybe 10,000 to 15,000 years old, right? Okay. Those theories. But the thing is that if you see, I mean, for Sanskrit is basically highly dependent on Devanagari script. It cannot be spoken or the whole, especially from the scriptures. If you see, right, language Sanskrit is the language of scriptures, of our scriptures primarily. So if you view from that angle, right, you try to like take those scriptures, I mean, whatever shlokas and verses are there in the scriptures, you take and you try to form it in a Sanskrit, which is pre-Devanagari. I mean, even Nagari script you try to take, you cannot like put together all the sentences, all the characters. For example, like Rishi, we have like Rishi word. So Rishi, the re character, जो अल्फाबेट है री, वो ही हमें मिलता है. We don't find it like in older inscriptions or validated, scientifically validated text from that ancient period. I mean, in the first millennia, basically AD. So we don't have it basically in there. तो यहाँ पे हमें 13-14 सेंचुरी के बाद ऋषि का हमें वो वर्ड मिलता है, वो कैरेक्टर मिलता है. ऋषि को प्रोनाउंस किया जा सकता है, ऑब्वियसली दैट कैन बी लाइक ट्रांसमिटेड ओरली. दैट इज वन आर्ग्यूमेंट. बट अगर हम ओरली ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी चीज को एंड दे थिंग्स आर बीइंग रिटन डाउन इन सम अदर लैंग्वेजेस, अदर स्क्रिप्ट्स, then definitely if Sanskrit is there, then we should be able to write it, right? We should have, I mean, had a reference before, I mean, that's 13th 14th century. But Okay. recently there was this discovery, right? 2500, a UK researcher of Indian origin, he claimed that he has like solved the mystery behind Panini's Sanskrit grammar. Like, so Hmm. it was being publicized to 2500 years old a lot, because Panini is thought to be present in 500 BC. So that is the reason. Hmm. And but that is also an estimate. That is when you go into the papers, if you read the papers, if Hmm. you focus on the, I mean, timelines, these are not strict timelines. These are estimates, and there's no, obviously, the estimation is based on the composition of the scriptures basically in Sanskrit. Hmm. It is not based on any hard evidence basically, right? Okay. So that Okay. is my point. That is my No, point. got your point. So before I proceed, I will ask one more question, one last question. That do you think? I'm just I'm asking. Do you think, if not Sanskrit, then any other language could be anyone? Is if you think that it is or it should be older than Sanskrit? Because see, the No, question is not like. any language. I cannot say that it's there is a language that could be like older. They could be contemporaries. I mean, Hmm, Sanskrit is fairly young in my view, right? okay. So definitely there are languages older, but there are like if you look at the timeline, like if you say the popular theory about the historicity of Sanskrit, that places Panini at 2500 years old and Sanskrit at 4000 years old. That is that language is basically a prototype, and it is not a language, I believe, because language needs a script to be written and a grammar. So if grammar comes in at 2500 years old, 500 BC, then previous to that there cannot be, I mean, it cannot be a language, right? Okay. Could be a script, it could be a spoken dialect, but yeah, it won't be a language. Okay, But so yeah, we in evolution, one more point. In evolution, I mean, before Sanskrit, I mean, Nagari script, you have Sharda script, you have several other script in like in the Buddha period. Sorry, let me just make one point clear that the timelines in Indian context, right? The calendaring basically, this hmm, BC and AD is not relevant for us, right? You would agree hmm, on that. Our yeah.
timeline should be pre-Buddha, Buddha, Hmm. post-Buddha, pre-Sankaracharya. I mean, Buddha to Shankaracharya period. Right? So Buddha is like believed at 600 BC. So there's a 600 BC birth of Buddha. We can take one reference, and then Shankaracharya comes in 6th to 9th century. Timeline is not clear. We can say 6th, like after 1,000 years. So that 1,000 years should be one period, and then post Shankaracharya should be one period. So if we talk in that kind of context, it will be best on, Okay. I mean, in Indian historical So okay, subject. so see, first of all, whenever we are talking about a language, right, we have to first understand the difference between a language and a script. Okay. Now, when we say language, it has again two parts, right? One is we are talking, right? We are talking in a particular language. We are talking in English language or Hindi language like that. And the second thing is we are writing something, right? Now, when we see these two, we are writing a language in some particular language and we are talking in some particular language. Now, obviously, the verbal communication is much, much older than the written communication in any language. So, no matter it's Sanskrit, Hindi, Telugu, whatever, right? Now, script, what we're talking about, like you said about Devanagari script, like that, right? Now, script is let the language evolve for a written communication, right? The characters, the symbols. I mean, if you go to Egyptian language or if you go to even other older ancient languages, you will see they may not be even. Hieroglyphs. Maybe so. Hieroglyphs. There will be some symbols instead of a and any character or any words what we say, right? So script is only for to write something. So we have created some sort of characters or symbols and we put it together to express something, right? So first of all, a script is only for some language to be written, not verbal. Verbal is much more than much older than that particular written. So if I'm saying that okay, we are talking, then definitely we must be talking since centuries or some even before that. But as writing something is something new, right? Now you said that Sanskrit is a modern Devanagari script. I mean, based on that Devanagari. So the problem is that language is not modern. That Devanagari script is modern. That was called a modern day script, right? Now the thing there were multiple script which was created, which we used, and it's now absolute. I mean, we cannot even have those kind of script. We cannot use that script, right? Now Devanagari script is something which we are using. I would say close to fifth or fourth century, right? So more modern day script. Why we are using it? Because Devanagari is the script is something on which we can write any language. So most of the Indian language, including Tamil, however, they claim that it's not Devanagari. They are using Brahmi, script, but that is not true. I mean, any modern language, especially the Indian language, you will see we have a Devanagari script, and that is the evolution, right? So maybe after 500 years might be some Devanagari may turn into something else, or maybe some other script will be created so that we can communicate effectively, right? So this is number one, right? So if I'm saying that Devanagari is itself almost 1,000 years ago, 1,000 years old language. So we are saying that the Sanskrit or any further language which evolved. Hindi is much newer, right? Hindi is much newer. Tamil is a little bit older than Hindi. Not a little bit, it's quite older than Hindi, right? So if I'm saying that 1,000 years old, we started writing Sanskrit in a Devanagari script. That means the verbal communication in Sanskrit, right? That is much older than that. Right? I'm not going what people used to say how started and when we got the evidence of Sanskrit. I'm not saying like that. I'm simply saying that if the script itself is 1,000 years old, then definitely the verbal communication must be very old.
right? And before that, we had many scripts. I hope you might have heard about the Brahmi script, right? So Brahmi script, I mean, is still, if we see, we will have some sort of Shilalik, if you are aware of that. We preserve something written on the stone, right? Especially if you go to Maurya Empire and that era, Buddha era, you said, right? So that time we got many Shilalik. So there you will see that the script was different. I mean the language which was written over there, what you find there is little bit close to some sort of symbols. So you will find generally a vertical or horizontal line. It's not having that kind of curve, but what we have with our characters right now. Okay, so that was written in Brahmi script. So there are multiple scripts. Brahmi is considered as the oldest script today we know about, right? Before that Brahmi script, and I don't know if you are aware that there was a language also. There's a language called Prakrit, right? So Prakrit was one of the language which is very old. It is close to, I mean, even older than I would say the Ramayana period, because when you read Valmiki Ramayana, there is a mention of Prakrit, right? There is mention that Lord Rama learned Sanskrit as well as Prakrit. Okay, so I'm saying that script wise, you have to divide the timeline, right? Since right now we are always, I mean, 99% we are working on a Devanagari script, and Devanagari script itself is a modern day script. I would say it's not very ancient. That's why we think that okay, Sanskrit is little bit, you know, modern. Now, one language can be written as multiple script. Unfortunately, we don't have multiple script right now. Or if we have, we may not be using it. So if you go to many villages, you will find there are some sort of language which you can't understand. It looks like Hindi or it looks like Sanskrit, or maybe it's looks like Tamil, but you clearly you can understand. Okay, there's a difference. So generally, I'm saying right now, unfortunately, most of the languages we speak or we write is based on the Devanagari script. Now, this is evidence, as per evidence. I'm saying, talking about whatever evidence we have. So if we have evidence for the script, definitely the language will be much older than that, right? One more evidence I want to give you. I mean, you might have heard about this Ramcharitmanas, right? I'm not talking about Ramayana because people may think that okay, we don't have the initial copy of Ramayana. I mean, it's written very older time. So definitely we don't have the. I will discuss about that also. What is that? So I'm talking about a written scripture. So written scripture, Ramcharitmanas, we all know, right? It's written 1670s, right? So it's almost 500 years almost, right? The oldest copy of Ramcharitmanas is said around 350 years plus, which is kept in one is Kashi and one is I think near to Ayodhya. Okay. Now the language Ramcharitmanas is written in Awadhi language. Awadhi is evolved from Sanskrit or closer to Hindi. Like Hindi is evolved from Sanskrit. Everything, I mean, every maximum language you will see that is evolved from Sanskrit, right? Now, so that is written in Awadhi, but what Goswami Tulsidas did is whenever he starts any chapter there, so like Ramayana, there are 7 cantos, right? So they always start a chapter with Sanskrit shloka. Okay, and that is clearly mentioned there, that is clearly written there. So I would say that we have a written evidence that at least Sanskrit is 300, 400, it's the written evidence I'm saying. And we all know that Tulsidas has written Ramcharitmanas way after actually Ramayana was written, right? And it was written in Sanskrit, everyone knows about it. Okay, so I'll stop here. So the point of this conversation is whenever we are talking about language, don't only talk
about how old languages or how new languages. That is based on the script. Number one, there are different multiple script. Sanskrit is currently based on Devanagari script. Earlier, it was based on Brahmi script. Earlier, it is called a Devavani. I mean, you said that there's no time for the gods and all. So I'm telling you, if you go and read Puranas, you will come to know that there are timelines also for even for deities or even for gods. So there are actual timelines given, and it is scientifically proven. Okay, so I'm not going into that. So number one, so one language, the current Sanskrit language is based on Devanagari, and since Devanagari script overall is a new, a modern day script, that's why we have that thinking. Okay, since it is 1,000 years old, so Sanskrit might be right. So before I proceed, I Okay. mean, if you have any question or any points. Yeah. So the point is, you said 350 years old. I've given you evidence. I mean, I've mentioned the hard evidence. Like it is 540 years old evidence we already have. No, no, And I said in it's a a transfer from context. yeah, I said in a context that, see, what evidence you are talking about. I mean, yeah, with you reference to Ramcharitmanas, you said, yeah. I'm So it will saying be like I'm the giving evidence you of a Ram. reference or Mhm. evidence which nowadays every house will find. Yeah, So it's yeah, easily but or I'm saying that readily available. yeah, older evidence is there, so that is already done. That is already, I mean, Yeah, yeah, accepted. true, true, true. Yeah. So the thing is that in Ramcharitmanas, if you get Sanskrit shlokas, then Sanskrit is pretty much available in its fully evolved form in that period, Yeah. right? So it is like it is like out of question there. But you mentioned about the evolution, right? The how it evolved through the scripts. Hmm. So firstly, do we should we believe that Sanskrit is the oldest language and all language are drawn out of it? They evolved from it. I mean, they got extracted and they branched out from the main Sanskrit language, right? So here So again, with that is one thing. And secondly, that is the conventional theory, right? That is the yeah, conventional theory. So do you support it? Like, if you could give a quick answer, I have more to add. So as do a you support that language, conventional theory? as Mhm. a language, without any doubt, I'm saying without any doubt, Sanskrit Mhm. is much older than any other language available. Okay. But is it the Uh, mother of these languages, at least Indian languages, if not European? no, I'm not. I'm not connecting Sanskrit with any other Greek or any Egyptian language. I No, don't no, want no, to. Indian languages, Indian language. mother of I the. mean, there is no any doubt. I mean, if you see the language, Mhm. okay. I Mhm. mean, see any language. What should I say? I mean, Hindi is clearly derived from Sanskrit. Okay, Mhm. Tamil, Yeah. Telugu, Punjabi, I mean every language which we have right now, and every language I'm saying has a rich history, rich culture. Tamil language Mhm. is even in Tamil language is mentioned in even in Ramayana also. So basically, Okay. the language, the scriptures or the text which is written in Sanskrit, in that text itself, we have a mention of Tamil language also. So every Okay. language has a very rich history, very rich culture. I mean, and all languages are derived from Sanskrit. You see all the words. Mhm. Right So now, many common words in right now other languages. I'm living in Hyderabad, so Mhm. Telangana. If you see the Telugu language, I mean, I'm Mhm. not very much aware about the South in languages. But since I'm Mhm. living here, if you see the Telugu language, it is you will see very close to Sanskrit. I think out Okay. of these four languages, South Indian languages, Tamil, Mhm. Kannada, Telugu, and Malayalam, and one is Tulu, five languages. I think this Telugu is very similar. So Okay. normally what happens is in Hindi we use, like for example, namaskar, right? Now namaskar, we generally say namaskar. In Telugu they will say namaskaram. I mean that is the exact word we are using in Sanskrit. And Mhm. Telugu language, it is said it's 4th century, you know, old. I mean, it started from 4th century, or some says that 400 BC, before Christ. So if Telugu is that old, you can just imagine what would be the timeline for
Sanskrit. Yeah. So the point here is like I will basically deny that claim that Sanskrit is the mother of at least Indian languages. I mean, in Indian context only. We are not Mm, going for Indo-European or that stuff. But the thing is that you mentioned the evolution through the scripts, right? So before Devanagari, there's Nagari script, and then before that, there's Sharda script. mm, You mentioned about Brahmi script. It's called Brahmi, but it should be called Dhamma Lipi, Dhamma script. Why? Because as you mentioned that you Dhamma have. Lipi, I'm sorry to cut you. Dhamma Lipi and Brahmi Lipi both are different. That is script, that Dhamma script is that timeline actually started with Buddha, Gautam Buddha. Mhm. Okay. Right, so that is also very old. I would say 25 years plus, 100 plus years, right? Brahmi Which one? was Which one? Dhamma Lipi? Dhamma, Dhamma I'm Lipi. saying. Yeah. Okay. Okay. And Brahmi, Brahmi, much older. I mean, um, Brahmi is much older. recently, I think Government of India did a research and they found there are little 100 person, I mean, people in India, 100 Hmm. odd people who can right now understand this Brahmi Lipi and this kind of thing. So it's almost gone. Yeah. But the thing is that what you're mentioning, I'm not sure about that. But the Dhamma Lipi is, I mean, the timelines, the hard evidence we have are the same inscriptions that you mentioned, right? Mauryan, not Mauryan, Ashoka's inscriptions. So Ashoka inscription has stated that this is Dhamma Lipi, ये Dhamma Lipi है और ये जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उसमें उसमें मतलब Mhm. जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख है, उसमें यही आता है। तो लेकिन उसको जब हमने रिसर्च किया गया है लेटर पीरियड में, बिकॉज़ बिफोर 18th सेंचुरी आई थिंक अशोका का तो हिस्ट्री भी पता नहीं था हमें। हमें हिंदू स्क्रिप्चर्स से नहीं पता चलता है। So when these I mean Britishers started like researching on the history, archaeology वगैरह में जब research हुई है, then they found out, and they when they tried to collate, they read all the uh, characters, and then they made that made out that alphabet of that language. तो वो ब्राह्मी, उसको ब्राह्मी नाम दिया गया, लाइक इट शुड हैव बीन कॉल्ड धम्म, एंड Okay. धम्म इज लाइक इन अशोका पीरियड ओनली वो मिलती है हमें। उससे पहले खरोष्टी स्क्रिप्ट है, उससे पहले खरोष्टी है, There खरोष्टी। are many scripts. बहुत सारे स्क्रिप्ट है अजय. So लेकिन एविडेंसेस नहीं है ना, एविडेंसेस तो हाँ, हमें उसी के मिले एविडेंस ना। की भी एक सीमा होती है. There's a limit to get evidence, हाँ, तो या तो वो right? आज लाइव हो, या तो Okay. स्क्रिप्ट लाइव हो या एविडेंस हो, No, दोनों चाहिए अगर that's what कोई। I'm saying. Something like okay, like dinosaurs, right? We know हम्म, dinosaurs were there a few crores years ago, right? They are gone now. हाँ, या Okay, you will say we have some sort of skeleton we found and those and that, right? फॉसिल्स, These are या so there are many things which were there and we lost them. That doesn't mean that they never existed. करेक्ट है, Okay, so करेक्ट है। evidence if you see evidence के लिए you have a limit. हाँ, लिमिट है, बट यहाँ पे एक जगह क्लियर है। अब जैसे खरोष्टी स्क्रिप्ट है, खरोष्टी स्क्रिप्ट इज नॉट प्रेजेंट टुडे, बट उसका हमारे पास में एविडेंस है, तो ब्राह्मी का राइट? भी है. इट इज प्रायर टू धम्म लिपि जो था, खरोष्टी ब्राह्मी था, का भी खरोष्टी वाज। एविडेंस है. रोस्टी का है, ब्राह्मी का है, शारदा. अगर एविडेंस हमें नहीं मिलता तो हमको पता कैसे हाँ, चलता कि उनका वो है, स्क्रिप्ट कभी उनका एग्जिस्ट है, करते थे. राइट। नहीं, There ये might तो be some other script. I'm not saying that Brahmi is the oldest one. I'm saying कि Brahmi is the known बट ब्राह्मी oldest. डिफरेंट कैसे है? ब्राह्मी तो धम्म लिपि है ना, उसी को तो बाद में ब्राह्मी बोला गया है। Lipi, okay. Normally, when you read the history, वी जो कैन आप ट्राई, वहाँ वी कैन पे ट्राई उसमें चेक द डिफरेंसेस we can बिटवीन। try. See, the problem here is जो भी हमारे पास अशोक के काल के जो शिलालेख हैं, हम्म, ओके, उसमें जो भी लिखा गया है, इफ यू सी द जो जो लाइक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको जो मेंशन किया है, दैट इज मेंशन एज अ ब्राह्मी लिपि. एंड ब्राह्मी इज नॉट ओनली ड्यूरिंग दैट पीरियड. ब्राह्मी उससे पहले भी वी हैव अ मेंशन ऑफ ब्राह्मी लिपि, राइट? नाउ धम्म हम्म, लिपि अगर उसको वहां पे उस समय कहते थे, दैट्स ओके. ये तो ये दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम आई एम सेइंग. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि ब्राह्मी जो है सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है.
मैं कह रहा हूँ सबसे पुराना अवेलेबल स्क्रिप्ट। माइट भी कुछ और स्क्रिप्ट होगा जो अभी हमको पता नहीं है, दैट्स व्हाई वी डोंट नो, नहीं, राइट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जो धम्म लिपि है, मतलब ब्राह्मी लिपि उस टाइम की है। अशोका के जो स्क्रिप्चर्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उसकी लैंग्वेज, जो उसकी स्क्रिप्ट है, दैट इज ब्राह्मी, राइट। तो यहाँ पे यही कंटेंशन है कि भाई, जो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि दे आर ट्राइंग टू रीनेम इट बैक टू धम्म लिपि, तो वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये बिहार वर्ल्ड है, ये भी कोई मतलब गवर्नमेंट की तो कोई वेबसाइट ठीक है, नहीं है, ठीक है, ठीक है। बट हाँ, अशोकाज एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस जो हैं उसी में देखो आप, तो हाँ, so ब्रह्म they स्क्रिप्ट जो है are वही saying ब्रह्म that it स्क्रिप्ट is है। Brahmi, or similarly that is same word is called as Dhamma. Okay, हाँ, that's राइट। fine. That's okay. Might be that at that time हाँ, वो लोग ब्राह्मी को ये धम्म अशोक लिपि कहते पीरियड में हैं। आता है, ये अशोका हाँ, में डेवलप होती है। मैं कह रहा हाँ, हूँ इससे। ऑफिशियली, इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑफिशियली, मतलब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो अनाउंस किया है कि हाँ भाई हमको जो शिलालेख मिले हैं, दैट इज अ ब्राह्मी स्क्रिप्चर, हाँ, ब्राह्मी बोलते हैं स्क्रिप्ट। उसको, बट वो हाँ, धम्म ब्राह्मी। लिपि उसी पे कॉन्टेंशन है कि दैट्स भाई ओके, धम्म दैट्स लिपि हो, ओके। क्योंकि ठीक वो है, अशोका के इंस्क्रिप्शन में आता है कि ये धम्म लिपि है, उसको नाम दिया गया था, इसीलिए वो बोलते हैं कि दैट्स भाई ओके। इसका नाम ओरिजिनली मतलब रहना चाहिए। ओके, एक चीज और आई वुड लाइक टू टेल यू, सॉरी। हम्म, सो व्हेन वी लाइक अशोका और इनके जो बात हम कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की जो हम बात कर रहे हैं, राइट। सो देयर आर, अभी वी आर सिटिंग इन 2023। हम्म, So after 2500 years or 3000 years, we are talking about this thing, right? या Now, the problem today is, and it's a very big problem, that almost everywhere, हमारा जो भी स्क्रिप्चर्स है या जो भी हिस्ट्री है, उसको इट्स डिस्टॉर्टेड लाइक एनीथिंग। हाँ, राइट, राइट। ओके, अग्री। सो अभी जो लाइक जस्ट एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल, लाइक एक ये कहानी सबको पता है कि किसके भाई किसके अशोक। फेवर में डिस्टॉर्ट हुआ है, ये भी एक बार आप हाँ, मेंशन वो करो कि मतलब बहुत फर्स्ट कुछ है मिलेनियम से, अभी। फर्स्ट मिलेनियम आईडी, सेकंड मिलेनियम आईडी, दोनों में किस किसके फेवर में हुआ है फेवर डिस्टॉर्शन। और अगेंस्ट, सो आई डोंट वांट टू जैसे डिस्कस। मुगलों के फेवर में सेकंड मुगलों के मिलेनियम फेवर में मुगलों के तो हुआ फेवर, ही है, अभी अभी तो बट नाउ। फर्स्ट मिलेनिया किसके फेवर में जा रहा है? फर्स्ट मिलेनिया किसके फेवर में है, क्योंकि वहां पे मुगल्स नहीं है। वो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ अभी, आई थिंक दैट स्टोरी यू विल रिलेट विद द फर्स्ट हम्म, मिलेनिया और इवन बिफोर क्राइस्ट आल्सो। सी, ये कहानी, देयर इज अ स्टोरी वेयर एवरीवन नो दैट अशोका वाज वेरी क्रूल। सो हम लोग हाँ। कहते थे चंड अशोक बहुत ज्यादा, ही हम्म, वाज वेरी क्रूल, एंड देन ही, उसने उसको बौद्ध धर्म के बारे में पता चला, ही आफ्टर कलिंग वॉर ही बिकम बौद्ध भिक्ष, बौद्ध, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, हम्म, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, एंड आई आल्सो बिलीव दैट, बिकॉज़ सी वी आर टॉकिंग अबाउट मौर्य एम्पायर, द चंद्रगुप्त मौर्य, उसके जो दादा थे, उसका हम्म, he had a very civilized, what you say, history, or the generation. So Maurya, Bindusar, and then Ashok, and furthermore. So ऐसा माना जाता है कि ये बताने के लिए कि भाई बौद्ध धर्म कितना थोड़ा शांति प्रिय है, हम्म, या गौतम बुद्ध ने शांति के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है, जो कि दिया है, उसमें देयर इज नो डाउट एट ऑल। हिस्टोरियंस ने जो अशोका की क्रूलिटी थी ना, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया। जो ओके। चंड अशोक हम लोग आज पढ़ते हैं, चंड अशोक इज अ वेरी न्यू टर्म। अच्छा। ऐसा अशोका का तो बहुत चीज हमको लिखा हुआ मिलता है ना, इट्स रिटन टुडे, इट्स रिटन हाँ, राइट। अवेलेबल। चंड अशोक का आपको कहीं पे रिटन नहीं मिलेगा, वी इट्स अ फ्रेज, वी क्या हुआ, 50 60 100 साल 200 साल बोलते 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 वी स्टार्टेड सेइंग लाइक दैट, हम्म, लाइक देयर आर मेनी स्टोरीज जो मान लो आपका रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं, स्टिल भी बिलीव कि ऐसा हुआ था, राइट। बोलते बोलते। लाइक अगर सिंपल सी बात है, वो लक्ष्मण रेखा का जो कॉन्सेप्ट है, हम्म, अब वो रामायण में है ही नहीं, लेकिन ओवर द ईयर, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण में रामायण। नहीं है, रामचरितमानस, अब रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में बहुत डिफरेंस है।
राइट लेकिन अब राइट द प्रॉब्लम इज कि अभी आपके घर में 99% लोगों के घर में वाल्मीकि रामायण नहीं रहेगी, तो रामचरितमानस रहेगी। हाँ, तो वो बिकॉज वो पढ़ते पढ़ नहीं पढ़ते पाते हैं, पढ़ते, संस्कृत पढ़ हाँ नहीं पाते एग्जैक्टली हैं। और दूसरा दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि अभी आज द प्रॉब्लम हियर इज कि अभी हम जिस टाइम में बैठे हुए हैं और हमारा जो माइंडसेट है, हम उसको ट्राई टू रिलेट दैट विद समथिंग व्हिच हैपेंड 10,000 years ago, हम्म। राइट, और उसको फिर हम उसी हिसाब से फिर मोल्ड कर देते हैं। सो दैट्स आई मीन आई एम नॉट गोइंग इनटू रिलीजियस बिलीफ, वहां पे खैर इट्स एंडलेस डिस्कशन। सो यहाँ पे जो आप बता रहे हैं ना, यहाँ पे धम्म जो वर्ड है दैट इज क्लोजली इंटीग्रेटेड विद बौद्ध धर्म, राइट राइट। लेकिन राइट। अशोका ने लिखा ना उसे अपनी इंस्क्रिप्शन में Obviously, कि लिपि obviously, का नाम। definitely he is a disciple, no? हाँ। He became a disciple of Bauddha Dharma, हम्म right? So he definitely, and he had a power that time. हम्म। कैसे हुआ, जो मुसलमान या मुगल यहाँ पे आए, उन्होंने पूरा हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया, why? Because they have उन्होंने had किया power. या लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने किया बाद में। Maybe no, it's sir, it's evidence. The oldest university, Nalanda University, it's burned out. वहां पे अभी भी नहीं, वो है, we have ओल्डेस्ट तो तक्षशिला है ना, नहीं नालंदा तो बाद में नालंदा, नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला, दीज आर द ऑर्डर, नालंदा तक्षशिला एंड विक्रमशिला। एंड ये अच्छा। तीनों जो यूनिवर्सिटीज थी, हु डिस्क्राइब दैट, तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, ये कॉन्सेप्ट लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट तो इज वेरी न्यू, मेरे ख्याल से ये हाँ नहीं, जब वो तो है, वो इन्वेजन्स और वो बारबेरिज्म तो है यूएसएसआर और डेफिनेटली। सोवियत रूस का जो ये लेनिन वेनिन जब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, देन ये टर्म्स जो है लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, दैट इज वेरी न्यू। मैं तो उसको हाँ, बात, इस व्हाट आई पे एम आई ट्राइंग थिंक टू से डिबेट होगा इज कि लेफ्ट और राइट होता क्या है एक्चुअली। okay. So what I'm trying to say is Ashoka became, he accepted Bodh Dharma. There's no problem in that. But मुझे ऐसा लगता है, many people, I mean, there's believe and it's written many places that because अभी क्या है, अगर मैं बोलूं कि कोई आदमी ना थोड़ा कम क्रूर था, क्रूर कम था, उसने वो अच्छा हो गया, तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन मैं मतलब बोलूंगा यार वो तो, फैसिनेटिंग स्टोरी हाँ, बनाने के लिए, थ्रिलिंग क्रूर था स्टोरी बनाने एकदम, अभी मैं बोलूंगा वो इतना क्रूर था, जैसे औरंगजेब हो गया, तैमूर हो के गया, लिए। वो एकदम बन गया सेंट बिकॉज ऑफ वन अच्छा। पर्टिकुलर रिलीजन और वन पर्टिकुलर पर्सन, दैट विल ओके। क्रिएट अ इम्पैक्ट। एंड दैट इज द सेम, आई मीन इफ यू रीड रामायण, अगेन आई एम सॉरी, मैं फिर से उसका रेफरेंस ले रहा हूँ, रामायण में श्री राम इज very, you will, it is portrayed as a normal person like we or you are, we are, you are, right? हाँ। लेकिन मानस में अभी क्या है, अभी मानस में इफ यू, द प्रॉब्लम इज द टाइम व्हेन तुलसीदास रोट रामचरितमानस, दैट टाइम इंडिया वाज अंडर द हैमर ऑफ मुगल्स, तुगलक, हाँ तुगलक। दैट, हाँ, मैंने मुगल्स, राइट, मुगल तो आ रहे थे ना, मुगल तो तभी ना आ रहे थे, जस्ट ना एंटर कर रहे थे। मुगल 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 उससे उससे पहले से, कुछ 10-15 साल पहले उन्होंने लिख दिया था ना। 1500, 1500 फिफ्टीन आई थिंक, थर्टीज में आए हैं वो, फिफ्टीन हाँ, थर्टीज में शायद आया बाबर। no, इसीलिए तो उसको it's a रामचरितमानस Mughal के लिए कहा empire, जाता I'm है not कि talking उन्होंने about a लिखा। Mughal empire, I'm talking about Mughals are, वो तो बहुत पहले से है। अभी खिलजी जो आया था और उसने नालंदा को पूरा वो डिस्ट्रॉय किया, वो मुगल नहीं, आज का नहीं नहीं, खिलजी, खिलजी इज नॉट मुगल। मुगल जो है वो बाबर से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज मुगल इज द टर्म फॉर मंगोल्स। वो मतलब हाँ ये हाँ हाँ, हिंदुस्तानी टर्म था मंगोल के ओके, लिए। अगर आप देखोगे, खिलजी जो है, खिलजी ये अफगानी था। खिलजी तो अफगानी था ना। ओके, मैं इसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। नाउ हम्म। बाबर से जो है मुगल एम्पायर शुरू हुआ। हाँ। मुगल, दिस वर्ड इज अ साइनॉप्सिस, और सेम वर्ड है फॉर मुसलमान। मुसलमान नहीं, मंगोल, मंगोल का No, वर्ड no, है। no, Mongol नहीं, I'm telling you, मंगोल Mongol, का वर्ड। again, if you see, there's a different dynasty. So Babur came from सबसे पहले Tamurai dynasty. इसमें इसमें एक मिनट, इसमें क्या है कि जो ये है आपका खोतान, खोतान एरिया पता है ना आपको, जो ये अभी आजकल का ये है ईस्ट टर्किस्तान है, जो सिंकियांग का प्रोविंस है चाइना का, Hmm. क्योंकि रेस्ट ऑफ प्रोविंस है ना। तो वहां पे जो ये इनका पहले जो इल्खनेत बना था, वो मतलब खानेट खानेट बना था, जो इनका पहले मुस्लिम कन्वर्ट होके जो इन्होंने बनाया था, उसमें मंगोल्स का नाम मुगल हो गया था।
है ना, देन वो फिर वो ठीक है। सेंट्रल एशिया से होते हुए फरगाना से होते हुए जब बाबर आया तो इसीलिए हाँ, उसको बोला गया खिलजी। और ये तो दूसरे है ना, ये तो इधर ये के हैं, अफगान के हैं, नहीं 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 नहीं, क्या खिलजी अलग खिलजी लाइन से है। मैं उसको नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं बोल रहा कोई भी हूँ कि मतलब पीछे है, उससे बाबर पहले सारे वाज अफगान है, उससे पहले सब बाबर तुगलक वाज अफगान है। फ्रॉम अ डायनेस्टी ऑफ तैमुराइड, तैमूरलन से, राइट। एंड तैमूर मंगोल तैमूरलन दोनों की जो साइड से था, डायनेस्टी दोनों है, हाँ, साइड से था। तैमूरलन की जो डायनेस्टी है वो जाकर के मंगोल से मिलती है, चंगेज खान से, हाँ राइट। हाँ तैमूरलन जो है कुछ, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट चंगेज खान का जो फर्दर जो भी उसका चला हम्म। जनरेशंस, उसमें आगे चल के तैमूर आया, तैमूर का जो जनरेशन चला उसमें आगे चल के बाबर आया, और बाबर से यहाँ पे मुगल साम्राज्य जिसको कहते हैं, मुगल एम्पायर, हाँ राइट वो राइट शुरू हुआ। सो मुगल राइट। मुगल इज जस्ट अ वर्ड टू डिनोट दोस पीपल। अगर आप रेफरेंस यूज कर रहे हैं दैट इज ओके, बट उससे पहले हमें घोरी गजनी के लिए थोड़ा सा अलग वैसे कॉन्टेक्स्ट है उनका, चलो तो वो कॉन्टेक्स्ट अफगान आई थिंक कॉन्टेक्स्ट है, बट लेट अस सी वी मुस्लिम आर इन्वेडर्स ऑफ डाइग्रेसिंग मोस्ट। फ्रॉम द इशू, तो हाँ ठीक है, उसको हम बाद में कभी मे बी सम अदर में हम हाँ, डिस्कस कर उसका लेंगे। अलग डिबेट इफ कर यू लेंगे। सी द जनरेशंस ना, सो इट विल, जो आपका अकबर और जो औरंगजेब का जो जनरेशन है, अल्टीमेटली वो जाकर के जो चंगेज खान और उसके पहले जो मंगोल साम्राज्य था वहां पे, बहुत बहुत उससे ही, दूर, बहुत हाँ, दूर है, उससे ज्यादा, खैर। बहुत जनरेशन। तो ओके, सो अब इस समय आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई जस्ट फाइनलाइज इट, राइट। हम्म जो लैंग्वेज की हम जो बात कर रहे हैं ना, जो रिटन लैंग्वेज और जो वर्बल लैंग्वेज है, हम्म सो एक चीज मैं बताता हूँ जो आपको थोड़ा सा उसमें थोड़ा क्लियर आइडिया देगा। So everyone says that the oldest scriptures we have, script or scriptures we have is are Vedas, right? हाँ Out of Vedas also it's Rig Veda. Many people say that Rig Veda is 1500 before Christ, so हम्म around ओके। 3.5 or 4,000 years. हाँ कन्वेंशनल बिलीफ हुआ है। Conventional belief. But it is also believed that Vedas was actually first evolved by Brahma. It said that. So that's a celestial timeline. If you see, it's huge. So I don't want to go there. But it is believed generally that it is actually started almost 28,000 years ago. If you see few research, it will say the Rig Veda, the origin of Rig Veda was very old. I mean 28,000 years ago. ओके। So it's यू मीन believed. कॉम्पोजिशन, हाँ कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ ना, बिकॉज जो लिखा हाँ, गया है वो तो हाइब्रिड the है। हाँ, तो लिखा गया तो कंपटीशन हम से। हम्म अभी ये हम्म जो लिखने वाली वाला बात जो है, हम्म। ये तो अभी हाल फिलहाल स्टार्ट हुआ है, राइट। तो कागज वागज तो बहुत अभी हाल फिलहाल आए हैं, बिफोर दैट वी नहीं, यूज्ड दो टू दो यूज। हजार साल से तो लिखा जा रहा है, ठीक 2300 है, साल से 2000 तो। साल इज नथिंग इफ यू टॉक अच्छा। अबाउट इंडियन हिस्ट्री। 2000 3000 पे तो हम बात ही नहीं करते, हम्म। राइट। 3000 ईयर्स अगो तो चलो, महाभारत भी मान के चलो, 5500 ईयर्स अगो महाभारत में तो देयर आर ह्यूज सिविलाइजेशन, वहां पे राजा बट थे, मैं दे वर मैं फाइटिंग। एक पॉइंट यहाँ मेंशन कर दूं कि सेलेस्टियल टाइमलाइंस जो आप कह रहे हो, ब्रह्मा का कह रहे हैं, स्क्रिप्चर्स वेदास वगैरह का कह रहे हैं, सब जो है साइंटिफिकली वैलिडेटेड नहीं है, दीज आर बेस्ड ऑन ईदर एस्टिमेशंस और बिलीफ्स। I would like you to have another podcast, right? हाँ उस पे करेंगे, उस पे I करेंगे। will tell you वो टॉपिक आप बता देना, उस पे हाँ, इस पे टॉपिक मैं करेंगे, बता रहा हूँ। So कवर। this in Puranas there's written that what is the age of Brahma, right? वो जो हाँ celestial timeline है ना, आई नो I will एस्ट्रोनॉमिकल है, I will एस्ट्रोनॉमिकल tell रेफरेंसेस you हैं। and you will be amazed हम्म to know how close it is with the scientific facts. अभी राइट कर राइट। नहीं सकते बिकॉज हमारे पास में टाइम नहीं है, राइट। एंड दिस इज नॉट अ हाँ टॉप। आई थिंक you can do it, and I trust you, you will be amazed. First when I got to know and I decode that, उस and पे रख लेंगे, I बट was अभी not the first, हाँ, वो कर लेंगे। अभी So जो मैं ये मेन कह मेन रहा हूँ पॉइंट कि था ना मेरा, वो हाँ, मिस हो गया कि ये so एक्चुअली संस्कृत जो हम कहते हैं कि इवॉल्व, मतलब संस्कृत से ब्रांच आउट होकर लैंग्वेजेस बनी है। हाँ, जब आप इसको प्रैक्टिकली एविडेंस से आप जब इसको वैलिडेट करने जाते हो, व्हाट यू फाइंड इज कि पहले हमारे पास में एक बेसिक फॉर्म है, उसके बाद वो एनरिच होते जाता है, वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। होता राइट, जाता स्टार्टिंग है। फ्रॉम खरोष्टी तो खैर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, बट धम्म लिपि से अगर आप स्टार्ट करोगे तो धम्म लिपि से फिर जो शारदा आ रही है, ये सारे लिटरल्स हमें लिपि जो से भी अगर आप बुद्ध स्टार्ट की, करेंगे तो भी तो वो कम से कम 3 से 4 हजार साल तो ऐसे भी आ गया ना जो उसका। जो जो बुद्ध से शंकर पीरियड है, उसमें मैं हमेशा से यही मेंटेन करता हूँ कि जो सारे किंग्स हैं,
इवन इंक्लूडिंग आपका ये पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र, हाँ। देवर बुद्धिस्ट एक्चुअली, और वो थोड़े से महायानी बुद्धिस्ट थे, तो इसीलिए वो हिंदुइज्म का ही एक प्री फॉर्म है, प्री शंकराचार्य बुद्धा फॉर्म है। बुद्धा इज हिंदुइज्म तो ओनली ना। तो जो इस जो नहीं, बुद्धा इज नॉट। हाँ, ओके, हिंदुइज्म नहीं कह सकते आप सिद्धार्थ हिंदू जो थे, धर्म नहीं कह सकते ओके, हो, लेकिन सिद्धार्थ हिंदुइज्म गो टू का द, मतलब हो गया कि जो शंकराचार्य का, अब बाद में जो ये आई टेल ब्रांचेस यू, हैं, वैष्णविज्म, शैविज्म एंड शाक्तिज्म, और उसके अगेन बाद जो वी थोड़े आर से जो, डाइग्रेसिंग, बट आई गिव यू हाँ, आंसर वो इन वन एक अलग लाइन। अलग वो एक अलग डिबेट है। सिद्धार्थ बट जो थे, माय जिससे पॉइंट बौद्ध इज, गौतम बुद्ध जो नहीं, थे, एक मिनट में पॉइंट मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि श्योर, संस्कृत इज लाइक, उससे पहले जैसे धम्म लिपि से आप देख रहे हैं, उसके बाद हमें हाइब्रिड संस्कृत मिल जाती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज करके, राइट, बौद्धों की जो जो बुद्धिस्ट की मिलती है, और वही 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी का हमारे पास में ओल्डेस्ट एविडेंस है, जो हमारा जापानीज मोनेस्ट्री में है, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में है। उसके बाद हमारे पास में जो भी इवोल्यूशन आ रही है ना, मतलब जो शारदा आ रही है, फिर नागरी आ रही है, देवनागरी आ रही है, संस्कृत जो है डेवलप होती जा रही है। तो ये एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस है, अगर आप एविडेंस बेसिस पे जाते हो। और आपने कहा कि स्क्रिप्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है, वर्बली ओरली चल रहा है, तो अगर ओरली है तो डायलेक्ट हो जाता है, जो आपने प्राकृत कहा। अच्छा, ये आपके धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि में पाली लिखी जाती थी, एंड पाली इज वो ऐसा वर्जन है कि वो थोड़ा टोन डाउन वर्जन है देवनागरी का ना, उसमें र के टाइप्स नहीं है, उसमें श के ज्यादा टाइप्स पाली नहीं है, एक पाली इज सिंपल वेरी स ओल्ड, है। पाली इज हाँ, वेरी ओल्ड। पाली वही है, मतलब हमारे पास एविडेंस बेस पे वही है, 2300 साल, जब ये चंद्रगुप्त के टाइम से ही है ना। हमने हाँ, हिस्ट्री लिखनी कब से शुरू करी? वो भी हमने बौद्ध से हिस्ट्री, जुड़ा हुआ है। पाली पाली जो भाषा है, दैट इज हाँ आल्सो कनेक्टेड टू बौद्ध, बट गॉटम हाँ, बुद्ध। उनके टाइम की भाषा है, लेकिन हमने हिस्ट्री लिखनी शुरू करी है आफ्टर दिस अलेक्जेंडर के जो इन्वेजन होता है, उसके बाद की आपको हिस्ट्री इंडियन से लिखी हुई इंडियंस के बारे में दिखाई देगी। रिटन उससे पहले हम हिस्ट्री नहीं लिखते थे, वी वर लाइक रिटन नॉन रिटन मटेरियलिस्ट। रिटन हिस्ट्री। हाँ हाँ, I was रिटन going हिस्ट्री, into that. I was going into रिटन that. So हिस्ट्री, now, रिटन okay, now, हिस्ट्री, राइट। what I'm saying is, I told you that written history and verbal language, written language and verbal. So verbal is much older, right? वर्बल तो डायलेक्ट हो So गया ना सर, बिना no, स्क्रिप्ट no, के that's हम what I'm डायलेक्ट saying. के। So there's a concept also for that. अच्छा, ओके। I was talking about paper, right? Paper पे हम लोग लिखते थे. Before that, we used to have a ताड़पत्र. तो पेड़ की भोजपत्र, हाँ छाल निकाल करके भोजपत्र ताड़पत्र, राइट, उस पे हम लोग लिखते थे. Before that, we हाँ, had a शिलालेख, right? अभी शिलालेख is the oldest, that stone is the oldest material एविडेंस है, I can हाँ। say, जिस पे हम लिखते थे. हाँ, बट प्लेटफॉर्म मीडियम है वो बेसिकली, मीडियम प्लेटफॉर्म जिस पे हमने कुछ लिखा. रिटन सोर्सेज हमें मिल रहे हैं, बट राइट। दैट डजंट, उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ हम लोग अभी जो, फॉर एग्जांपल महाभारत और रामायण जो है, दैट इज कमिंग सिंस, अगेन मैं इसमें सेलेस्टियल टाइम लाइन नहीं जोड़ रहा हूँ, नॉर्मल टाइम लाइन भी जोड़े तो टेन थाउजेंड, इंडस वैली हाँ, स्क्रिप्ट हमारे पास है। 10,000 ईयर्स रामायण करते हैं, तो हमारे पास सारे श्लोक्स हैं, राइट. सो डेफिनेटली, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है, दैट देयर इज टू कॉन्सेप्ट कॉल्ड श्रुति एंड स्मृति. हाँ, वो तो Okay, वेदों में again मिलता it is related to language only. है। ओके। Now Shruti and Smriti, now it's considered that the four Vedas are only Shrutis we have. Oh sorry, Shrutis we have. Shrutis ओके, means सुनना, किसके मुंह से सुनना, सुन, हाँ, फ्रॉम सुन के जो उनको, जो ईश्वर ने उन्होंने सुना। कहा, राइट. हम्म, कुछ लोग दे बिलीव दैट गीता इज आल्सो श्रुति बिकॉज ईश्वर ने कहा, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा, वी बिलीव दैट हाँ, दे राइट, आर, he was a god, right? But राइट, the actual concept is the four Vedas, they are Shrutis, right? ठीक है। Now what happened is, Shruti मतलब सुनना. अभी ब्रह्मा जी हम्म, ने वेद कहे, and हम्म, उनके, it's written, again there is no evidence, I'm just saying what is written, right? हाँ, That उनके जो थे मानस पुत्रों ने उसको सुना. तो ब्रह्मा जी के हम्म, 16 मानस पुत्र माने गए, उसमें से जो 7 थे, they are very scholars, जिसको हम लोग सप्तर्षि कहते हैं. So ओके, they heard it, they हम्म, heard and they memorized it. हम्म, नाउ उसके बाद आता है स्मृति, मेमोराइज, मेमोरी में डाल देना उसको. हाँ, राइट, हमने, राइट, राइट। अब आपने मुझसे कुछ कहा और मैंने उसको समझ लिया. जो उसके ह्यूमंस ने बाद मतलब ये, सेकेंडरी हाँ, जो गेन तो किया। दैट इज कॉल्ड अ स्मृति, कि उसने स्मृति में हम्म, डाल दिया, मेमोरी में डाल राइट, दिया राइट, उसको. राइट, एंड द सेम नॉलेज दे पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, हाँ, टू देयर डिसाइपल्स और देयर सन्स एंड देयर फैमिलीज एंड हम्म, ऑल. सो ये जो राइट, आज इतना साल पहले, जिस समय हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था शायद लिखने के लिए, लैंग्वेज वाज हम्म, देयर,
अभी संस्कृत में श्लोक है तो वी कैन अंडरस्टैंड, ओके देयर वाज अ लैंग्वेज, लाइक हम्म एनिमल्स आल्सो दे टॉक, राइट, दे हैव लैंग्वेज बट दे डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट, दे कैन नॉट राइट। सो उसी तरह उस समय हमारे पास नहीं, देयर वाज नो स्क्रिप्ट व्हिच वी कैन राइट, और अगर होगा भी तो इट्स नॉट अवेलेबल, हमको भी पता नहीं है, हम्म। राइट। सो श्रुति हुआ कि हाँ ब्रह्मा ने कुछ कहा, स्मृति हुआ किसी ने सुन के उसको याद किया, एंड सेम उसने उसको फॉरवर्ड किया अपने नेक्स्ट जनरेशन को। हाँ राइट। हमारे साथ भी ऐसा होता है, राइट, हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर कुछ कहते हैं, वी हाँ आल्सो। कुछ सिखाते हैं तो जनरेशन तो टू जनरेशन वो ये ट्रांस होता हम लोग तब तक आए, स्मृति का कॉन्सेप्ट तब तक चला। सो कहते हैं वेद के अलावा जितना कुछ भी है, रामायण है, महाभारत है, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सब स्मृति में आ गया। सो वेदास है। ओनली राइट। श्रुति एंड बाकी सब स्मृति में आ गया। तो स्मृति तब तक चला जब तक वी डेवलप द स्क्रिप्ट, so that whatever we are now, till now we are only memorizing, right? Now we developed a script and we start writing it on stones, or then further usko talpatra, now we are doing it on paper, ओके। right? So ये जो concept स्मृति का है, तो आप अभी कब स्टार्ट किया, शिलालेख कब स्टार्ट किया, जनरली पीपल अगेन they connect it with बौद्ध काल ओनली, लेकिन उससे पहले भी नहीं है। तो आप अगर इस पॉइंट पे अगर आप ये देखो कि आपको मिलती है जो जर्क्सीस का पीरियड है ना, जर्क्सीस मतलब हमारी हिस्ट्री ईरान के बिना तो हो नहीं सकती ना कंप्लीट। जो जो पारसी पूरा एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर, जो कि दार्य वॉर से शुरू होके फिर ये शेयर्स, जो इनका जर्क्सीस का नाम है, जो 300 मूवी में हाँ, विलन है, वो विलन था। बाद में तो वो हो गए थे, मतलब वो बन गया था पूरा वो, मतलब रासलीला करते रहते था। तो यहाँ जो ये पाकिस्तान एरिया है तो उन्होंने वो उनके अंडर था एम्पायर में, राइट। तो उनके तो बहुत सोर्सेस हैं हमारे बारे में, वो लिखते थे, वो पहले से लिख रहे थे उस टाइम से। और उनकी स्क्रिप्ट अरामाइक स्क्रिप्ट है, अरामाइक का एक वर्जन खरोष्टी स्क्रिप्ट है जो कि हमारे यहाँ से मर्ज होके बना है। मर्ज के ठीक है। बना, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई चीज आ रही है वो एनरिच होती जा रही है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और बहुत ज्यादा एनरिच हो रही है। इतना वो और कल्चर्स में मतलब और एम्पायर्स या सिविलाइजेशंस में नहीं हो रही थी। यही तो कमाल की चीज है ना लेकिन हमारा कल्चर में। अभी देखो लेकिन जो मैं एक और हम्म, पॉइंट यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो लिटरल्स आप देखोगे, जो अल्फाबेट्स या आप कैरेक्टर्स देखोगे फ्रॉम इंडस वैली स्क्रिप्ट तो डिकोडेड नहीं है, हम्म, बट उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसका लोगों ने एक इवोल्यूशन वो बनाया है, सीरीज बनाई है कि हम्म, इंडस वाली स्क्रिप्ट हो गई, खरोष्टी हो गई, और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स उन्होंने करी है कि ये आके आके देवनागरी बनती है। हम्म, उसके लिटरल्स मिलते हैं, लेकिन सारे सारे जैसा कि मैंने कहा ग्रामेटिकली सारे कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं सारे, मतलब जो जैसे विसर्ग है ओम नमः, तो नमः हम्म, नहीं मिलेगा। शरणम हम्म, में श नहीं होगा, स होगा, सरनम सो होगा। होगा, हाँ। न न में भी वो ढ वाला न नहीं होगा, सिर्फ न होगा पाली में। फिर जब वो हाँ, तो 9th वही वही सेंचुरी में वही तो संस्कृत आ इवोल्यूशन जाएगी है तो ना। वो शरणम उस शरणम हो जाएगा। तो तो किसी भी संस्कृत चीज के को जो स्क्रिप्ट का, द लेकिन द पॉइंट इज कि संस्कृत जो है, संस्कृत लैंग्वेज जो है, वो नहीं लिखी जा सकती विदाउट देवनागरी। वो किसी पिछले किसी भी स्क्रिप्ट में या ग्रामर या किसी उसमें हाँ, लिखी नहीं जा सकती है। ओरली अगर वो ट्रांसमिट हो रही है तो हाँ, उसका वो क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, मतलब उन विसर्ग का यहाँ पे होने का क्या अर्थ है, और वहां पे वो किस फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया जा रहा है पिछले उसमें स्क्रिप्ट में, राइट। इसका कोई कनेक्ट, मतलब इसका कोई रेलेवेंस मतलब मिलता नहीं है बेसिकली। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि संस्कृत, जो मेरा क्लेम है वही। कि भाई संस्कृत जो है वो 9th सेंचुरी के बाद ही, जब इसकी देवनागरी की डेवलपमेंट शुरू होती है, वो देवनागरी के साथ ही फुली डेवलप होती है। ये तो और मैं तभी, हम लोग और आई थिंक स्क्रिप्चर्स भी तभी लिखे गए। स्टार्टिंग में हम लोग यही डिस्कस किए ना हाँ कि नहीं, मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्चर्स संस्कृत, भी उसी टाइम लिखे गए हैं। डेफिनेटली स्क्रिप्चर्स जो भी हम लिख रहे हैं, अभी आप ओके। देखो, व्हेन फॉर एग्जांपल वाल्मीकि ने वो रामायण लिखी, तो हम लोग कहते हाँ हैं लिखी, बट बेसिकली नॉट लिखी, उन्होंने कहीं लिखा नहीं था, बिकॉज देयर कंपोज वाज करी, नो। सो कंपोज उन्होंने करी कंपोज उन्होंने, की और उन्होंने रचना अपने, की। हाँ, हम्म, अभी वंश पायन को उन्होंने दिया और उसके बाद फिर आगे चलता गया। तो अभी क्या है, समवे अराउंड, आई डोंट नो कितने साल के बाद या कितने हजार साल के बाद, समवेयर अराउंड वो हमने कुछ स्क्रिप्ट जनरेट किया होगा। फॉर एग्जांपल हम्म, हम ब्राह्मी के बारे में बात करते हैं, उसमें हमने जनरेट किया होगा, राइट। अभी वो जो भी स्टोरी है जो चल रही है, उसको हमने वहां पे हम्म, लिखा,
फॉर एग्जाम्पल उस अभी स्क्रिप्ट भी टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है ना। हाँ अभी बेसिकली हुआ क्या है, देवनागरी व्हाई दैट इज सो फेमस, बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट। लेकिन वो संस्कृत को एक्सप्रेस करने के लिए भी तो वही ऑब्वियसली प्रॉपरली कर पा रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्क्रिप्ट, नॉट अ लैंग्वेज। ये जो हाँ। देवनागरी स्क्रिप्ट है, ऑन टॉप ऑफ हम्म, दैट जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप उठा लो, तो हम्म। देवनागरी, दैट्स व्हाई अभी क्या देवनागरी 1000 साल हो गया है, हाँ, इवन इवन 1100 ज्यादा, ज्यादा हो गया है, बट स्टिल वी आर स्टिल इवॉल्विंग। अभी जो पहले का जमाने अब में तो लिखते थे, एवोल्यूशन नहीं हो रही है ना उसकी, अब तो ना हो ना गया ना, स्टैटिक हो अभी गया ना आप वो तो देखो, 14 सेंचुरी में आके। अभी भी आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, लाइक हिंदी, हिंदी लैंग्वेज में बोलता हूँ। अभी आप हिंदी, हाँ हिंदी इससे ब्रांच आउट हो गई। हिंदी, नहीं हिंदी नहीं, एक नई हिंदी लैंग्वेज लैंग्वेज की बनी। बात कर रहा हूँ कि हाँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बार कोर्ट में गया, सो वी गॉट अ वेरी ओल्ड पेपर। पहले अच्छा। जमीन रजिस्ट्री होती थी, राइट? हाँ हाँ अभी हाँ रजिस्ट्री होती है तो हम लोग अपने लैंग्वेज में, जो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जो भी है उसमें लिखते हैं, राइट? राइट। सो वी गॉट अ, देयर वाज सम लैंड डिस्प्यूट, मेरी फैमिली की बात बता रहा हूँ हम्म मैं। हम्म एंड वी बोला कि यार इसका, सो इट वाज सेड दैट ओके, ये राजा ने, जो यहाँ पे पहले राजा होते थे, उन्होंने दे डोनेटेड दिस टू माय एंसेस्टर्स एंड अच्छा। इसलिए दैट वाज द केस। सो ओके। उन्होंने कहा भाई अगर किया होगा तो कुछ ना कुछ, देयर मस्ट बी सम रिटन डॉक्यूमेंट। सो भाई हम्म। बातचीत हुई, उन्होंने दे व्हाट अ पेपर, एंड ओके। उन्होंने एक पेपर लाए, और दैट वाज जस्ट 180 years old। ओके। ठीक है, 150, 180 दे आर सेइंग। सो 200 साल पुराना भी नहीं है। देयर वाज अ पेपर, आई मीन आई डोंट नो हाउ दे सर्वाइव्ड और समथिंग, ओके? ओके। एंड ओके। इट वाज अ फोटोकॉपी, सो इट वाज नॉट द एक्चुअल पेपर। उसका फोटोकॉपी इन द सेंस, पहले वो हाँ हाँ, उसका लगा कॉपी किया। करके करते थे, राइट? अच्छा। नाउ दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज हिंदी ओनली, हाँ, बट आई देवनागरी हिंदी है। कांट, आई कांट रीड इट, अच्छा। हाँ तो and I'm वो telling you प्योर the हिंदी होगी exact, ना, वो प्योर that हिंदी is होगी। Hindi, right? You understand when you see. The thing is, like आज हम और जिस तरह लिखते हैं, या जो भी वर्ड्स और जो भी कैरेक्टर्स हम आज लिखते हैं, I'm talking हम्म। only 150 years back, उसका कुछ अलग ही तो वो तो तरीका था। कैलीग्राफिक, वो तो हाँ कैलीग्राफिक एग्जैक्टली, सो ये इवॉल्व एवरी एवोल्यूशन एवरी है ना। टाइम नॉट वी आर स्क्रिप्ट, नॉट स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट के कैरेक्टर अल्फाबेट चेंज नहीं हुआ है। अल्फाबेट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वही अल्फाबेट मैं बोल चेंज रहा हुआ हूँ, है या when नहीं we are हुआ है। talking about देवनागरी स्क्रिप्ट, हम्म। सो यहाँ पे प्रोग्रेस हमेशा होता रहा, कंटिन्यूस प्रोग्रेस है। वर्ण नहीं, वर्णमाला भी क्या हुई है, एनरिच हुई है उसके बाद 15 सेंचुरी के बाद वनमाला भी एनरिच हुई है। देवनागरी। आज हाँ डेफिनेटली, आज अगर हमारे पास अ से लेकर के ज्ञ तक है, आप हाँ ही बता रहे थे राइट, जैसे री है हमारे पास, वो पहले री इज एक्चुअली रिलेटिवली न्यू कैरेक्टर। हाँ, तो री तो 14 सेंचुरी में आ गया था ना, लेकिन हाँ ठीक है, 15 सेंचुरी के बाद तो कुछ नहीं आया ना बट उस नया। भाई हिंदी, हिंदी 14th century का नहीं है ना, हिंदी तो हिंदी तो पुराना है। लैंग्वेज, लैंग्वेज उस स्क्रिप्ट को यूज ना करती ना है ना ना, लैंग्वेज बनी ना बाद में। ओके ठीक है, तो अभी लैंग्वेज बाद में। हिंदी या संस्कृत जो भी आप माने, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लैंग्वेज है वो इवॉल्व होता रहा है, राइट? अभी जो संस्कृत लैंग्वेजेस हम ब्रांच आउट हुई हैं और इवॉल्व भी हुई हैं, इवॉल्व भी बट हुई, हाँ एग्जैक्टली। देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो 15 सेंचुरी तक आके पूरी मैच्योर हो गई है, और उसके बाद तो उसमें कोई चेंज हाँ नहीं हुआ। मैच्योर उसको हम मानते हैं कि, वैसे तो बहुत लोग फुली कहते हैं कि डेवलप्ड भाई है, मतलब फुली संगम काल डेवलप्ड से ही है। है, लेकिन ठीक है, संगम काल भी तो बहुत पुराना हो गया, सो अभी तक बहुत इवॉल्व हुआ। तो ये दैट इज द ओके। मेन रीजन देवनागरी इज वेरी फेमस, बिकॉज इट्स इजी। इसके ऊपर, और बेस्ड ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट, any language formation, the characters, the वर्णमाला, everything is very easy comparatively if you talk about Brahmi or Prosti or maybe Sharda लिपि। तो ये तो So रिवर्स एक्सट्रापोलेशन हो गया ना, आप वापस जाके आप वही सोर्सेस को, जब जैसे कि मैंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि जो है, वो बुद्धम शरणम गच्छामि होता था। अच्छा मियाँ, ठीक है। जो शरणम है उसमें श भी वो वाला अच्छा, चेंज इसमें हुआ, भी, इसमें भी एक चीज, अपग्रेड ओके, हुआ, और इसमें भी न भी एक अपग्रेड चीज हुआ है। ना। अच्छा, इसमें भी हाँ, एक चीज है, शरणम और सरनम में there's a concept थोड़ा called मीनिंग in भी चेंज language, होता है। हाँ, तो हाँ, थोड़ा मीनिंग भी चेंज होता है called पाली और इसमें। अपभ्रंश। अपभ्रंश हाँ। means it was something else, हम्म। but बोलते 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 it became something else। हाँ, ये तो कन्वेंशनल थ्योरी है ना कि संस्कृत फंक्शनल जो है थ्योरी है, डिग्रेड राइट? हुई है बेसिकली। अब संस्कृत शरणम डिग्रेड जो होके है, इसलिए शरणम लैंग्वेज हो बची। गया, ठीक हम्म। है, वो अभी
maybe, or maybe other way around. I don't know. I really don't know. So हाँ, तो वही ये वही वही डिबेट है कि ये संस्कृत जो है हाँ, इवोल्यूशन मतलब डिग्रेड हो रहा है, डिवोल्यूशन हो रहा है या इवोल्यूशन हो रहा है। नहीं संस्कृत का संस्कृत तो देयर इवॉल्व होके इज आ रही है ना 9 वॉल्व सेंचुरी हो से। रहा है, बट फॉर अ कमिंग जनरेशन इट इज पॉसिबल कि आज से 100 साल के बाद या 200 साल के बाद जो संस्कृत और हिंदी हम आज लिख रहे हैं, हम उस तरह से हो सकता है ना लिख के उसको वो कुछ और इवॉल्व हो सकता नहीं, है यहाँ यहाँ वर्णमाला में यहाँ कुछ कंफ्यूजन है। संस्कृत और हिंदी तो हिंदी और संस्कृत की तरह ही लिखी जाएगी ना। देवनागरी में आप कह रहे हो कि नई स्क्रिप्ट आएगी हमारे पास या नई लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज लैंग्वेज बोल रहा हूँ, पूरी नई स्क्रिप्ट लैंग्वेज आ देवनागरी ही जाएगी ना। रहेगी राइट, लेकिन अच्छा, जैसे मैं स्क्रिप्ट कह रहा वही हूँ रहेगी और लैंग्वेज एक वर्णमाला नई नहीं, आएगी। अब जो वर्णमाला है राइट। अब ओके, हाँ, ये भी मैं बता दूं आपको दैट संस्कृत इज द मोस्ट रिच इन टर्म्स ऑफ वर्ड कैरेक्टर्स एंड ऑल। क्योंकि वो इंजीनियर्ड लैंग्वेज है ना यार। वो हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज में आप इंजीनियर बिलीव होके नहीं करोगे, दैट इज इंग्लिश लाइक अ इंग्लिश में मैथमेटिकल लैंग्वेज। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके अलावा भी अगर मिलाएं तो मैक्सिमम वर्ड जो है वहां पे वी हैव 60,000 ऑड वर्ड्स, हम्म उससे ज्यादा नहीं है। एंड 60,000 में भी वी डोंट इवन यूज मोर देन 10 to 15,000 वर्ड्स। हम्म तो उस ओके। मामले में भी अगर, तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप स्क्रिप्ट को एक मिनट भूल जाओ, जो स्क्रिप्ट के ऊपर जो लैंग्वेज चल रही है ना, लैंग्वेज ऑलवेज रन्स ओवर स्क्रिप्ट राइट, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग हम सेइंग। हाँ बोलने में भी हाँ हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। आज जो हम जिस तरह से बात कर रहे हैं और थोड़ा 100 साल पहले लोग बात कर, वो भी ठीक है, वो डिफरेंट है, हाँ, चेंज हो रहा है, राइट। चेंज हो रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर लैंग्वेज भी इवॉल्व हो रही है। हो सकता है 100 साल, आपने कहा कि हिंदी तो हिंदी 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 ही रहेगी, लेकिन अच्छा, हो सकता लैंग्वेज है कि इवॉल्व हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम वर्णमाला में स्क्रिप्ट। कुछ और ऐड हो जाए, अपार्ट हो फ्रॉम सकता है स्क्रिप्ट वर्णमाला से और कुछ उसके हम जो फालतू चीज जो हटा अदर लें। एस्पेक्ट्स हैं वो इवॉल्व हो जाएंगे क्या स्क्रिप्ट को छोड़ के, एग्जैक्टली आप ये कह रहे हो सकता है, हो। अच्छा, वी नो इट ना कि 100 साल 200 लेकिन साल लेकिन के बाद स्क्रिप्ट तो स्टैटिक है ना। स्क्रिप्ट सब तो स्क्रिप्ट स्टैटिक अभी हो गई तक ना देवनागरी। स्क्रिप्ट देवनागरी स्टैटिक है देवनागरी, सिर्फ टिल देवनागरी मतलब उसके टिल वी ऊपर डोंट कोई और फाइंड बन एनी, जाए उसको ले। हाँ कोई और अच्छा उससे स्क्रिप्ट मेरे को मिल जाएगा, वी विल हाँ, अगर हम उसको लेकर उसके ऊपर अगर बिल्ड करते हैं, एक नया बिल्ड बनाते हैं, कर दैट सकते इज डिफरेंट थिंग। लेकिन देवनागरी तो हमारी हैं 15th देवनागरी, सेंचुरी हाँ। तक So डेवलप अभी हुई देवना, होगी। and don't fall into this Aryan Dravidian script fight. This is absolutely crap, I'm telling you. नहीं, वो तो था ही नहीं। वो तो आपने तमिल तो वाला वो तो मेंशन अभी किया था, मैं उसमें गया अभी नहीं। थोड़ा सा दैट इज स्टार्ट हुआ है 100 साल पहले से, बट हाँ ये हाँ, कहने का मतलब है कि ये लैंग्वेज हमेशा से वही है। अभी संस्कृत को भी हम लोग थोड़ा सा इजी बना रहे हैं। आई टेल यू वन मोर एग्जाम्पल, अभी आप संस्कृत की कोई बुक लीजिए राइट, एंड यू सी हाउ सिंप्लीफाइड संस्कृत। हाँ हाउ द संस्कृत इज रिटन, you will see a lot of things right, you will see आपको विसर्ग मिल जाएगा, हलंत मिल जाएगा, and all those stuff you will see। राइट आप राइट। ज्यादा मत जाइए, आप किसी भी अच्छे कोई पुराने लाइब्रेरी में जाइए और वहां पे संस्कृत की कोई बुक होगी, आप उसको उठाइए, ओके। इट्स संस्कृत ओनली राइट, you पुरानी will see पुरानी संस्कृत। that sanskrit is much tougher, हो सकता है, हाँ, tough उसके for ओरिजिनल us, फॉर्म में वो tough for us। So as we are progressing na, so we are actually going away of the purity, I will say। अब संस्कृत जब इवॉल्व हुई होगी, नो वन नोस कब हुई है, अगेन मैं वो फिर अगेन वो सेलेस्टियल सब में नहीं जाना चाह रहा, बट जब भी हुई होगी दैट दैट फॉर्म आज कोई नहीं पढ़ सकेगा। वो तो ग्रामर, आपने बोला ग्रामर, कैलीग्राफी ग्रामर अलग चीज है और उस सर, ग्रामर एंड ग्रामर कैलीग्राफी जो है उसकी वो चेंज हो सकती है, ठीक है ना। स्क्रिप्ट, लेकिन स्क्रिप्ट अल्फाबेट तो वही रहेगा ना। अल्फाबेट में कुछ ऐड या चेंज होगा। अल्फाबेट नहीं तो देवनागरी स्क्रिप्ट में भी तो जो वर्णमाला में अल्फाबेट है नथिंग वो चेंज। चेंज हुआ है ना, बहुत सारा नहीं नहीं, आपका जो 15th सेंचुरी के बाद लॉ है देवनागरी में हुआ है। हुआ है। हाँ अभी हाँ। जो लड़का पढ़ते हैं, अच्छा। आप लड़का या लड़की, लॉ, हाँ हाँ इट्स अ वेरी हाँ वेरी हाँ, न्यू बड़ा। कैरेक्टर, पहले नहीं था। अच्छा, वो पहले बाद में आया श्रृंगार जो फिर। श्रॉ पढ़ते हैं, श्रॉ राइट, श्रॉ, हम्म। श्रवण कुमार जो रहता है राइट, सो दैट इज हाँ आल्सो हाँ वेरी हाँ। न्यू। तो अभी क्या है, वो न्यू वो तो कैरेक्टर री क्या है, वगैरह के साथ आप, वो तो 15th सेंचुरी में आ गए थे ना हाँ, ये वर्ड्स। कहने का मतलब ये स्क्रिप्ट वही थी, लैंग्वेज वही थी, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक हाँ। दैट लैंग्वेज मोर इजी हम लोग कुछ चीज ऐड किए, कुछ चीज हटाए, फालतू की चीजें हट गए। लाइक इंग्लिश में भी है ना, अब पहले अच्छा, आई डोंट नो, आप ये कह रहे हो कि क्योंकि हमें बोलने की जरूरत थी और उसके लिए कैरेक्टर नहीं था, तो बाद में वो कैरेक्टर डेवलप हो गया आगे। हमको लगा कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल, चलो मैं थोड़ा टेक्निकल हूँ, आप भी टेक्निकल हूँ, बात करते हैं। वी बिकॉज नो मैं द भी उसी में जाने वाला हूँ। वी नो तो द बोलिए। यू नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट,
हाँ हाँ हाँ। अभी सी कोई यूज नहीं करता बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स नाउ, बहुत चीजें लिखनी पड़ती है आपको. If you हाँ, वो talk about Python or maybe some other, ओल्ड you हो know, गई, अब लाइब्रेरीज बन गई अब हैं क्या तो हो फिर गया, वो थोड़ा उनको सा हो डायरेक्टली गया. यूज कर लिया जाता है। अगर हम एक कोड को सिर्फ 2 लाइन में अचीव कर सकते हैं तो उसके लिए हम 10 लाइन क्यों लिखेंगे? सेम कॉन्सेप्ट तो है उस लैंग्वेज में भी. तो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर की इवॉल्व हो रही है ना, वो डिवॉल्व थोड़ी हो रही है। हाँ, तो ऐसा तो दैट नहीं इज हुआ ऑल्सो कि इवोल्यूशन ना. ऐसा नहीं हुआ कि जावा पहले थी, उससे कम 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 होते हुए सी मिल गई हमें, सी प्लस प्लस आए फिर सी हो है गया, ना, ऐसा तो वही वही जावा भी सेम तो चीज सी मैं प्लस बोल प्लस रहा का हूँ ही कि वो सर है। अब जैसे सी था, अभी सी शार्प आया, राइट? अब सी शार्प इज जस्ट सी बट इट्स अ यूजर फ्रेंडली हाँ, वर्जन ऑफ सी. सी प्लस प्लस का थोड़ा वो है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, वेरिएशन है। राइट? बट वो इवॉल्व, अच्छा आप कह रहे हो सिंप्लीफाई हो गया सी शार्प। सिंप्लीफाई होना, सिंप्लीफाई. बिकॉज अभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमको जो जरूरत नहीं, एंड दिस इज अ नॉर्मल इवोल्यूशन रिक्वायरमेंट यू विल से. हम्म। अभी पहले जो क्या था, बंदरों की, सॉरी, इंसानों की पूंछ थी, राइट? हाँ ओवर द टाइम ठीक है। उसका हमको जरूरत नहीं पड़ा, वी लेफ्ट इट, वो खत्म हो गया धीरे धीरे. हाँ। ठीक है ना? अभी हम्म, एक डोडो करके एक देयर वाज अ बर्ड. हाँ अब उसको लगा यार, एक्सटेंट हो गया हम, हाँ। हाँ, हम लोग ना बेकार उड़ते हैं, हम लोग को उड़ने की जरूरत नहीं है, खाना पीना सब. However, because of that they got destroyed, अलग बात है. हम्म, बट लोग हमेशा चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं. हम भी करना चाहते हैं, सब कोई करना चाहता है, राइट? And that's why, I mean, if, and that is written, I mean, हाँ। that is told by NASA. I बट mean, there बट was a. आप इसको जो है, आप इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन से जो आप एग्जांपल दे रहे हो, वो जो मतलब कॉन्टेक्स्ट है, इज ह्यूमन इवोल्यूशन गेटिंग कॉम्प्लेक्स और वो सिंप्लीफाई हम हो रही है? टॉकिंग सिंप्लीफाई मैं बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स क्यों होगा? तो हो तो कॉम्प्लेक्स रही है ना, आप नहीं, बंदरों से इंसान कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? क्या बोल रहे हो आप, कैसे मतलब इसको बंदरों से समझें? आप देखो, आप हर, थिंग इज, अभी जो वर्ल्ड है हमारा, हाँ हाँ। ये बंदर बना सकते थे क्या? वर्ल्ड बंदर बनाएगा मतलब, नहीं मैं समझा नहीं, मतलब मैं नहीं बना सकता अभी बट। अभी जो वर्ल्ड है, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कार चल रही है, प्लेन चल रहा है, अच्छा हाँ, अगर हम हम मैन्युफैक्चर इवॉल्व नहीं ऑब्वियसली हुए नहीं कर होते. सकते। हाँ, बंदर तो अभी भी है ना, हाँ बंदर है हम भाई। उन्हीं से हुए हैं, लेकिन देर आर, बंदर तो अभी भी है, राइट? मंकीज आर स्टिल पेरेंट पेरेंट देयर. इट्स, पेरेंट सेम था ना, वो लाइन हाँ, अलग सो होगी वो और। अभी भी है, वो इवॉल्व नहीं हो पाए, हम हो गए. हम्म। एंड आई एम नॉट तो हम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लिकेट हुए ह्यूमन ना, इवोल्यूशन, आई एम टॉकिंग इसीलिए अबाउट मैं कह रहा हूँ इवोल्यूशन. कि हमें एडेड वो आए ना, क्वालिटीज एडेड हमारे हाँ, में वो आए, तो एक, कॉम्प्लेक्स हुए ना हम तो। हम नो 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 कॉम्प्लेक्स. मतलब मैं देखिए मैं आप, इंटेलिजेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स मैं, क्योंकि बंदर कॉम्प्लेक्स हम इंटेलिजेंट बना हो दे या रहे ना हैं सर. हो, मैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, कह रहा हूँ। देखिए, कॉम्प्लेक्स हम कर दे रहे हैं अभी. सो ये नेक्स्ट डिबेट का मतलब, वो एक छोड़ी, डिबेट इस हाँ, पे वो भी रखेंगे कि दैट्स ह्यूमन इट. इवोल्यूशन इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड और गेटिंग I'm सिंप्लीफाइड not तो। talking about human evolution or language evolution or any kind of specific evolution. I'm talking about evolution. सिंपल. हाँ, तो इवोल्यूशन का इवोल्यूशन सिंपल जो है कॉन्सेप्ट वो है बहुत, कि हमको अपना लाइफ आसान बनाना है, और लाइफ आसान ही जैसे बना सकते सिंगल हैं. हाँ, सिंगल सेल से लेके आप अभी तक देखोगे, लाइफ तो कॉम्प्लिकेट हुई है ना, इवोल्यूशन तो कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लिकेट कर दी है। इवोल्यूशन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं हुई है. या आप देखो, उसमें आप साइकिल्स आप होती है कि टेक्नोलॉजी छोड़ कभी दो. उसमें नहीं सर, आप टेक्नोलॉजी देख सिंप्लीफाइंग रहे हो. साइकिल्स होती हैं और फिर उसमें कॉम्प्लेक्स आप, हाँ, टू अगेन एंड आई एम फ्रो चलता है। सेइंग, आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो, हम्म। वो हमारा माइंडसेट कॉम्प्लेक्स हुआ है. हाँ आदमी को ओके। जीने के लिए क्या चाहिए? आदमी को जीने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, एक रहने के लिए कुछ, इतना ही चाहिए ना. राइट राइट। अब इस इन सब चीजों का मिलना आज के जमाने में बहुत इजी है, अगर आप चाहेंगे कि बहुत स्टोन एज में हमको जैसे मिलता था. तो सिविलाइजेशन तो कॉम्प्लेक्स इसी को आपने कहते हैं बनाया, ना, ये तो आपने जो है उसको कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो गया ना। बनाया कि हमको कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. मैं एक ह्यूमन, ह्यूमन से, द इवोल्यूशन प्रॉब्लम इज इवोल्यूशन का फेज ही तो है। इवोल्यूशन का चलो जो. इवोल्यूशन पे हम करते हैं बाद में डिबेट ओके, करते हैं, आई अभी बैक जस्ट टू द फिनिश इट टॉपिक। विद वन वर्ड, इट्स सर्वाइवल. हाँ ठीक वो है. ठीक है, वो हम करेंगे उसको द मेन प्रॉपर कोर डिबेट। ऑफ लैंग्वेज और ह्यूमन और एनीथिंग, इवोल्यूशन का जो मेन कोर है वो है सर्वाइवल. हम कितने आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं. ये जो ओके। तामझाम है हम लोग के पास, कंप्यूटर चला रहे हैं, ये चला, वो तो हमारा चॉइस है, वो तो हमने अपना किया हुआ है ना. तो लेकिन जो पाली है धम्म लिपि है, और इसका देवनागरी संस्कृत का कॉम्बिनेशन अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है, पाली इज नॉट अ तो लिपि, पाली इज लैंग्वेज. पाली और धम्म का जो कॉम्बिनेशन, मतलब हाँ, धम्म में जो लिखी जाती है पाली,
और देवनागरी में जो संस्कृत लिखी जाती है, इसका आप कंपैरिजन करोगे तो कॉम्प्लेक्स तो संस्कृत है ना, या देवनागरी है ना। दोनों मतलब देवनागरी और संस्कृत दोनों नहीं से नहीं नहीं नहीं। मतलब अपने काउंटर पाली, पार्ट से देखो पाली, कॉम्प्लेक्स। पाली लैंग्वेज जो है, इफ यू सी दैट लैंग्वेज, हम्म। और इवन इफ आई से, इवन दो इफ यू सी द लैंग्वेज रिटन ऑन ब्राह्मी जो कहते शिलालेख पे है, हाँ हाँ। that that will like looks like it is simple than what we are writing today. Okay, but वो the मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो मतलब कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, हाँ जो कैरेक्टर्स की बात, अल्फाबेट्स और वो हैं। हाँ तो अल्फाबेट्स की बात जैसे करो। जैसे मैंने बताया कि पाली में जस्ट एक ही वेरिएशन स का है, श हम्म, या श या स मतलब उसके मल्टीपल नहीं है। और प के नहीं है, प का फ नहीं आता उसमें, और स के नहीं है, और आपके इसके नहीं है, र के नहीं है। र के इतने री र और जो आपने बताया वो वाले नहीं है, राइट। तो उस सेंस में दैट इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड ना। देवनागरी उससे कॉम्प्लिकेट मतलब उससे एनरिच हुई है बेसिकली। देवनागरी उससे देखो एनरिच भी हुई, एनरिच ही हुई है, कॉम्प्लिकेटेड तो हम नहीं कहेंगे उसको। और हाँ, दूसरी मैं बात है मैं कि व्हाट, डिफिकल्टी लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि उसमें ऐड हो रही है चीजें। हाँ मतलब ऐड हो वो रही है, एक ऐड हो रही ऐड हो है, रही और है। वो थोड़ा सा इवॉल्व हो रही है, सिंप्लीफाई हो रही है चीजें। सिंप्लीफाई, हाँ, यूसेज सिंप्लीफाई हो रहा है और उसकी एक्सेप्टेंस सिंप्लीफाई होती है, बट दी जो अल्फाबेट अपने आप में अल्फाबेट है, और जो लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे ग्रामर, ग्रामर तो खैर अलग चीज हो गई। ग्रामर तो अलग जो हो गया, हाँ। लैंग्वेज का जो स्पोकन जो वो है, स्पोकन एक्सेंट है। अब आपने प्राकृत भी कहा था, तो प्राकृत वाज लाइक, पाली तो भाषा हो गई, और प्राकृत वाज नॉट एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। प्राकृत हाँ को पाली में ही उस टाइम पे जब इसमें बहुत ज्यादा वो प्राकृत, नहीं थे, you you उसको you पाकित you कहा might जाता have, you might have read from Wikipedia or somewhere. It is called as a है। क्या package of language which is पैकेज? mentioned वो by, क्योंकि but वो actually नेचुरल डायलेक्ट्स थी ना, वो तो रीजनल exactly. डायलेक्ट्स। But Prakrit जो है, if you learn the older scriptures, आपको प्राकृत का mention you will find in Ramayana also, in Mahabharata also. महाभारत हाँ में ठीक है, मिलेगा, रामायण में मिलेगा। ठीक है, हाँ And in Ramayana it's clearly mentioned that Prakrit was a language. हाँ ठीक अब है, वो लेकिन कैसा मैं तो था, कह रहा हूँ ना क्या था, कि we never know. मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे मेरा क्लेम क्या, मतलब ये बेसिकली काउंटर क्लेम है कि भाई संस्कृत जब डेवलप हो रही है 9th सेंचुरी के बाद, जब भी हो रही है तब वो पूरी लिखी जा रही है, और रामायण तभी लिखी जा रही है, और तब तो प्राकृत का हमें पता है ना, तब इसीलिए वो पाकित को प्राकृत लिखा गया। एक्चुअली में पाकित था, क्योंकि ये जो एडिशनल वेरिएशंस थे साउंड्स के, र के हो गए, स के हो गए, ये होते नहीं थे उस जमाने में। और लेकिन आप बख्शाली स्क्रिप्ट देखेंगे अगर, जो कि 1st सेंचुरी बीसी की है, तो वो उसमें श्री कृष्ण और बलराम की स्टोरी है, ठीक है ना। तो वो प्राकृत में लिखी गई है, वो दैट इज लाइक मतलब उसको प्राकृत का फॉर्म एक माना गया है, जो प्री संस्कृत है, क्योंकि प्राकृत आई संस्कृत से डोंट थिंक सिमिलर है। प्राकृत में होगा, बिकॉज प्राकृत को एब्सोल्यूट हुए बहुत टाइम हो गया, अब I mean, अभी मुश्किल नहीं ही नहीं, है प्राकृत। बख्शाली है, बख्शाली स्क्रिप्ट को संस्कृत का बोल दिया जाता है, लेकिन संस्कृत नहीं है, वो प्राकृत है। एंड नॉर्दर्न या एरिया में आपको बख्शाली के लिए तो आई ईस्ट। हैव टू सी, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट बख्शाली। सो हाँ। कहने का मतलब ये है कि हर चीज के तरह दैट लैंग्वेज इज आल्सो बिकम सिंपली, आज का जो संस्कृत हम पढ़ते या लिखते हैं, हम्म। वो पहले के संस्कृत से बहुत इजी है, बट लेकिन है संस्कृत ही फिर भी राइट। अगर आप टेक्नोलॉजी से अगेन अगर इसका एनालॉजी ड्रॉ करेंगे, तो कंपेयर करते हुए कि मतलब जो सिंप्लीफाई हो रहा है, यूसेज सिंप्लीफाई हो रहा है, यूजर्स के लिए सिंप्लीफाई हो रहा है, उसके लिए लेकिन नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना। मेरे पास में स्मार्टफोन आ गया, मैं हाथ से मैं एक बार में पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। लेकिन नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी तो बहुत कॉम्प्लिकेट हुआ ना, स्मार्टफोन आया, फिर उसके बाद इंटरनेट आया उस पे, और वो ये तो सब भाई भाई फीचर्स, दैट इज द बैक एंड ना। बैकएंड है जो भी अभी मतलब हम लोग जो टेक्नोलॉजी तो बात कर कॉम्प्लिकेट रहे है हैं, ना। नहीं लैंग्वेज, लैंग्वेज इज नॉट बैक एंड ना, ग्रामर इज बैक आप एंड। कम्युनिकेशन की बात करो, कि हाँ कम्युनिकेशन तो जो है मैं वो कम्युनिकेशन सिंप्लीफाई की हो बात रहा कर है। रहा हम हूँ, लैंग्वेज की ग्रामर बात इज कर रहे हैं। बैक एंड, लैंग्वेज इज फ्रंट एंड हो गया ना, तो हमको फ्रंट एंड से मतलब है ना अभी, डे टू डे। नहीं, कम्युनिकेशन फ्रंट एंड है, लैंग्वेज इज द बैक एंड, और लैंग्वेज का पार्ट है ग्रामर वगैरह, ग्रामर और स्क्रिप्ट कम्युनिकेशन वगैरह। मतलब हम लोग कम्युनिकेट तो लैंग्वेज से ही करते हैं ना, किसी वन लैंग्वेज वी हैव टू सेलेक्ट। इसी में आपने एक और पॉइंट बोला था कि ये चिड़िया वगैरह जो हैं, इनके पास में लैंग्वेज नहीं है, बट ये कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज है, सॉन्ग के, इनके तो पास स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, स्क्रिप्ट नहीं है, सॉरी, स्क्रिप्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है, लिख नहीं लैंग्वेज सकते हैं। सबके पास है। हाँ, तो उसको उसको एग्जैक्टली लैंग्वेज नहीं कहेंगे, बट हाँ मतलब हमारे ह्यूमन सेंस में लैंग्वेज उसको नहीं नहीं कहेंगे, बट सर आप, जब आप ये देखते हो, फर्स्ट आपने देखा है अफ्रीकन जीन्स, जो इंडियन जो फर्स्ट जो इंडियंस थे, जिनको कि माना जाता है जो माइग्रेट करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, उस पे जब रिसर्च हुई थी, तो वो भी ब्राह्मण्स थे बेसिकली,
साउथ में, केरला वेरला साइड में कहीं पे। तो व्हाट दे वर डूइंग इज वो भी टीच करते, जैसे कि हमारा वो ट्रेडिशन रहा है कि वेदा हम पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को। वो बंदे टीच कर रहे थे वो लोग, और लेकिन जब वो टीच कर रहे थे तो वो कोई श्लोका और वो सब नहीं कर रहे थे। देवर बेसिकली बहुत पर्टिकुलरली कुछ साउंड्स बता रहे थे, और जो साउंड्स थी वो एक्चुअली नेचर में चिड़ियों की साउंड्स थी, जिससे वो कम्युनिकेट किया करते थे। तो शुरुआत तो साउंड से हुई है ह्यूमंस की भी, और वो अभी भी आज भी सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, वो एक एक प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, राइट। सो वो प्रोनाउंसिएशन हैं। उसके बाद अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब विसर्ग नहीं है और हलंक नहीं है, ठीक है, तो आप पाली के पीरियड में या फिर आप मतलब प्री संस्कृत मतलब प्री देवगान नागरी पीरियड में आप उसको लिखेंगे कैसे? ओम नमः शिवाय को आप कैसे लिखोगे जब आपके पास में हाँ, विसर्ग नहीं है, वही वही मैं बोला, अभी राइट। मैं चिड़ियों या दूसरों की बात कर रहा हूँ। उनके पास देयर मस्ट बी सम देयर ओन लैंग्वेजेस, वी डोंट नो, वी डोंट हाँ, अंडरस्टैंड, वो एक राइट? अलग चीज है, वो एक अलग चीज द है, वो वो कम्युनिकेशन मैं के लिए। उसको मैंने बताया था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। मैंने आपको बोला हाँ, लिखना से बहुत स्क्रिप्ट नहीं है, पुराना। लैंग्वेज है अपना ये। तो यू नेवर नो, आई मीन हो सकता है मे बी 1000 years के बाद हो सकता है दे आल्सो स्टार्ट, वी नेवर नो, राइट? हमको खुद के बारे में 5000 साल पहले नहीं पता था कि हम वी विल स्टार्ट राइटिंग। तो अब अब हम ये नहीं कह सकते ना कि जो हमारा सिंगल पेरेंट है, जो एप्स का और हमारा ह्यूमंस का जो है, हम उनसे उन्होंने ये कंपोज करना शुरू कर दिया था और हमने जस्ट उसको जाके वो भी नहीं नहीं इवॉल्व नहीं, कर लिया। वो मैं नहीं कह रहा हूँ। वो देखिए, वो दैट इज अ ह्यूमन इवोल्यूशन, वो हमारा फिजिकल इवोल्यूशन है। फिर हाँ, मेंटल उसके बहुत इवोल्यूशन टाइम भी है बाद फिजिकल जाके भी है। हमने लैंग्वेजेस को हाँ, जैसे आपने कहा अभी स्टोन हीरोग्लिफ्स एज में थे। लोग रहते थे, स्टोन एज में लोग अगर रहते थे तो देयर मस्ट बी सम लैंग्वेज, बट वो तो सिंबल्स होते थे प्रॉपर ना, लैंग्वेज नहीं हो सिंबल। सकता, सिंबल हो, कुछ साउंड हो, कुछ कुछ हो। हाँ हाँ See, the हाँ, मतलब जनरली। ultimate goal is, the ultimate motto is what you are saying I can understand. अभी बहुत अच्छा। लोग, फॉर एग्जांपल मेरे को इंग्लिश नहीं आती फॉर एग्जांपल, बट हम्म आप जो मेरे को बोल रहे हो अगर इंग्लिश में, एंड इफ आई कैन लिटिल बिट अंडरस्टैंड, हम्म तो वो दैट इज सफिशिएंट। कम्युनिकेशन का मतलब लैंग्वेज से सिर्फ नहीं होता, कम्युनिकेशन मतलब ये है कि आप जो बोलो मेरे को समझ में आना चाहिए बस। हम्म। ठीक है, अब ओके उसमें आप शुद्ध बोल रहे हो अशुद्ध बोल रहे हो वो तो खैर बात की बात होगी। ओके। हाँ, ठीक है। अह, वो लेकिन ये जो है ये डिबेट अभी ओपन है, मेरे को नहीं नहीं लगता नहीं, कि हम डिबेट ओपन है, हम डिबेट। जंप कर अच्छा पाएंगे, चलिए, एक चीज और मैं आपको बता देता क्योंकि हूँ हम फिर। कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज आप अगर आप इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन मतलब आप हार्ड एविडेंसेस पे जाते हो, आप स्क्रिप्ट्स को अगर आप देखते हो तो आपको दिखता है कि एक एनरिच हो रही है, तो लैंग्वेज बाद में जाके संस्कृत जो है डेवलप हो रही है। लेकिन अभी फॉर क्योंकि हम कह रहे हैं एग्जांपल कि टाइमलाइन पुरानी है, हम कह रहे हैं कि टाइमलाइन मैं इसको पुरानी है, थोड़ा सा कंक्लूड तो करने हमको की ये कोशिश करता हूँ। इस्टेब्लिश। हाँ, मेरे बाद आप कर लेना। तो हाँ। इसमें क्या है कि जो पीरियड से जब ये संस्कृत आती मतलब जो पुरानी लैंग्वेजेस आ रही हैं, ठीक है, हम्म, ये जो हमारा मतलब स्क्रिप्चर्स के जो वर्सेस हैं या श्लोक्स हैं, ये उस हम्म, पीरियड में बोले जा सकते होंगे लेकिन लिखे तो नहीं जा सकते, लिखे नहीं जा सकते। ठीक है। हाँ, लेकिन वही मैं बोले कंक्लूड आप करना जब चाहता लिख नहीं सकते हो आप, तो आप अगर आप बोल रहे थे तो अगर आप लिखते हो तो आप उसको पूरा क्यों नहीं लिखते हो? और अगर आप पूरा नहीं लिखते हो और अगर 500 बीसी में कहते हैं कि पाणिनि ने ग्रामर डेवलप कर लिया था, हूँ। जो कि ऐसा उस पे डाउट है, वो 5th सेंचुरी एक्चुअली बोला जाता है। पाणिनि को भी इस पीरियड में माना जाता है पतंजलि के साथ, तो उस पर अलग डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका जो ये मतलब जब आप लिख नहीं पा रहे हो, आप बोल रहे हो, और बोल रहे हो तो आप लिख क्यों नहीं रहे हो? और अगर सब कुछ लिखा जा रहा है उस टाइम पे, क्योंकि पाली के सारे मतलब बौद्धों के सारे लिटरेचर त्रिपिटक वगैरह सब उसी टाइम लिखे जा रहे हैं, और हमने अशोक ने स्टार्ट कर दिया है कि हम अपनी हिस्ट्री लिखें, इंस्क्रिप्शंस उसने बड़े स्केल पे स्टार्ट कर दिया है। अशोक ने मौर्य ने भी स्टार्ट कर दिया कर है, दिया ड्राइंग बिकॉज उस समय ड्राइंग तक फ्रॉम वी हैड अ पाली। स्क्रिप्ट। हाँ, तो वो पाली स्क्रिप्ट है ना, तो जो भी हो, हमने लिखना शुरू कर दिया, तो हमने कहने का संस्कृत कैसे मतलब लिखी है basically? दिस कहने का दैट मतलब टाइम वी हैड अ कैपेबिलिटी टू राइट समथिंग। अभी देखो, तो अभी हम मान लो संस्कृत एक क्यों नहीं लिख रहे थे उस टाइम पे? सिंपल एक वही चीज है बोले, कि मान संस्कृत लो पर मैं, कोई कोई हमें एविडेंस पुराना क्यों नहीं मिला, देवनागरी का स्पेशली, सर इसलिए अगर नहीं इतनी पुरानी मिलता चीज। क्योंकि जो लैंग्वेज संस्कृत की बात कर रहे हैं, अगेन हाँ सेलेस्टियल्स को भूल जाइए आप, फिर भी जो स्क्रिप्ट जब हमने उसको, स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, लिपिबद्ध करना। लिपिबद्ध करना मतलब जो भी हम बोल रहे हैं। अभी आपने क्या, हाँ आपने सुना होगा कि भाई जो वाल्मीकि ने कहा या जो वेद व्यास ने कहा उसको बाद में लिपिबद्ध किया गया। वाल्मीकि में कहते हैं ना हम्म, कि वाल्मीकि, सॉरी, वेद व्यास कह रहे थे और गणेश जी उसको लिपिबद्ध कर रहे थे। तो लिपिबद्ध कहने का हम मतलब लिख उसको रहे थे, लिखना, लिख रहे थे, लिखना। लिख रहे थे। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट उसमें नहीं मिलेगा, रामायण में नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो आपको अच्छा। अगर वो श्रुति और स्मृति का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट? हम्म। हाँ हाँ, वो वो तो समझ में, हाँ, तो हाँ, वो वही है, स्मृति करते 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 वी रीच एट दैट पर्टिकुलर लेवल वेयर वी कुड डेवलप अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट सो दैट वी कैन आल्सो उसको राइट, उसको वी कैन राइट इट। लेकिन लेकिन अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा ना कि जब इतना हमारे पास में ज्ञान है हम्म एंड हमारे पास में मतलब उसमें अगर आप वेदों में पढ़ोगे, वेदों में जो आपको पूरी रिसर्च्ड मैटर मिलता है आपको, हम्म साइंस के टॉपिक्स हैं, मैथ्स के टॉपिक्स हैं, जो ज्योतिष वगैरह के हैं, ये सब हैं, हम्म ये सारे वेल रिसर्च्ड हैं। तो हम्म जब उसमें वेल रिसर्च हो रही है, जब उसमें काम हो रहा है, तो एक स्क्रिप्ट क्यों नहीं डेवलप हो पा रही? maybe we didn't जबकि have, दूसरी right? स्क्रिप्ट अवेलेबल है, जबकि दूसरी स्क्रिप्ट अवेलेबल है, बट उसमें वो लिखा नहीं जा पा रहा है। कौन सा स्क्रिप्ट अवेलेबल है जिसमें संस्कृत नहीं लिखा जा रहा? संस्कृत तो किसी आप स्क्रिप्ट में देवनागरी के अलावा नहीं लिख पाएंगे, नागरी में भी नहीं लिख पाएंगे पूरी तरीके से। आप लिख ही नहीं पाओगे, आप करके देखना, ट्राई अभी कीजिए। और अभी किसने मेरा अभी चैलेंज मे बी, एक्सेप्ट किया था लिंक्डइन पे, वो श्रीकांत जी ने किया था। श्रीकांत जी 15 तारीख से पहले अवेलेबल नहीं है, तो उनसे भी हम पूछेंगे कि भाई उन्होंने ट्राई किया कि नहीं किया, बट नहीं हो सकता बेसिकली। when we say and when there is evidence that when there was a Brahmi लिपि also, ठीक है, हाँ सो वहां पे हाँ, जो ब्राह्मी लिपि में देयर वाज मेनी श्लोकास शिलालेख पे है पड़े हुए, यू वो कैन तो चेक दैट बौद्धों आल्सो। के हो गए ना अभी वो। नहीं नहीं ठीक है, वो जो शिलालेख पे जो मान लो उस समय का द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, हाँ हाँ, लेकिन वो बौद्धों बट के, वो वो लैंग्वेज त्रिपिटक कौन सा है? के, त्रिपिटक के सूक्त है ना वो तो। नहीं नहीं, वो सूक्त है वो। लैंग्वेज कौन सा है फिर? वो पाली लैंग्वेज है। पाली पाली लैंग्वेज ठीक है, बख्शाली, पाली। बख्शाली में प्राकृत है, जो कि संस्कृत के जैसी है, पुरानी, मतलब जो अच्छा संस्कृत चलिए, का इस पे हम कभी और डिबेट करते हैं आराम से, किस ठीक है। चीज पे? एक, इंस्क्रिप्शंस पे या नहीं इसी नहीं, टॉपिक? आप जो कह रहे हैं ना कि संस्कृत दूसरे स्क्रिप्ट में लिखी नहीं जा हाँ सकती, हाँ ठीक है, हाँ, ये मेन इस कंटेंशन ही पे था, ये हम पॉइंट कर एक्चुअली ये था सकते यार हैं। कि हाँ, लेकिन इस एक पे चीज कर और भी देखिए ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड इट्स रिसोर्स इज ऑल नॉट एवरीथिंग। सिर्फ रिसोर्स चीज नहीं होता, मे बी देयर माइट नॉट नीड। अभी मैं और आप संस्कृत में बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इन एंशिएंट टाइम, राइट? हाँ हाँ, ये एंड पॉइंट मैंने मेंशन आई करके कह कुड रहा हूँ आई ना। कुड मेमोराइज एवरीथिंग प्रॉपर्ली, हाँ, ठीक इसीलिए है, तो संस्कृत आई बनाई गई है। डोंट वांट टू संस्कृत इज राइट अ इट। मेमोराइजेबल लैंग्वेज, उसको कोडिफाई करने के लिए ही बनाई गई है संस्कृत। अभी क्या है कि अभी प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि आपने मुझे कुछ पढ़ाया, हम्म, अब मैं चाहे कितना भी आई ट्राई हार्ड बट आई कैन नॉट teach the same way what you have taught me actually. हाँ, So there is a loss of knowledge every coming year or coming लॉस्ट इन centuries, ट्रांसलेशन, वो हाँ। लॉस होता चला जाता है। आई हाँ, थिंक जो मुझे ऐसा लगता है कि we reached at that position when we couldn't memorize anymore अच्छा। or we could find a difficulty। आज भी देखो, आज भी हमको ऐसा नहीं कि मेमोरी तो हमारे पास है, राइट? हम्म, बट अभी हम नहीं कर सकते उतना, दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइसेस, वी सब कुछ लिख के रखते हैं, वी हैव नोट्स एंड ऑल द स्टफ। हो सकता है ओवर द ईयर थाउजेंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू इयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, वी रीच्ड एट दैट प्लेस कि ये जो स्मृति का जो कॉन्सेप्ट था, हम्म, it हम्म, was too hard for us that we had to evolve some sort of a script so that we can अच्छा। make it compliant। ठीक है, तो मतलब हमारा बेसिकली हमारा नेक्स्ट डिबेट का टॉपिक तो इवॉल्व हो गया है यहाँ पे। हाँ वो ये रहेगा कि संस्कृत संस्कृत की दूसरे स्क्रिप्ट में क्यों नहीं लिखा अच्छा, गया, हम जाते उस पे ही जाते हम एक और चीज बता दूं मैं डिबेट आपको, करेंगे। हाँ आई थिंक हाँ, बट नेक्स्ट end ये this टॉपिक ले session, लेंगे, ठीक है। we can end this और भी कोई session with टॉपिक बताओ, something। बताओ। आपको पता है, राइट, यू नो मंत्र, राइट? मंत्र, हम्म, so it's always in a श्लोक फॉर्मेट, हाँ ठीक है, हाँ श्लोक। हाँ अभी श्लोकास वाज देयर व्हेन वाल्मीकि थे या वेद व्यास थे, तब भी श्लोक था, मंत्र था, आज भी हम्म, है, मंत्र है, श्लोक है। हाँ हाँ हाँ। हैव यू एवर थॉट that why only and only Sanskrit can, mantras and shloka can written only in Sanskrit? वही तो मेरा सवाल है, वही मेरा सवाल, क्योंकि उसमें विसर्ग और That, हलंत that, उसमें that is that is the एडिशनल capability कैरेक्टर्स of है a ना। language, है ना? That's okay। मैं कह रहा हूँ अभी अभी for example we have a conflict between Tamil, Sanskrit or Hindi, whatever, but there is वो तो no other language in the world जिसमें आप श्लोक लिख सकें। इवन जो संगम राइट काल पे जो आपके राइट। जो लिटरेचर है, जो लिटरेचर अभी हाँ तमिल में है ना, हाँ शिलपतिकारम और वो सब जो लिटरेचर उस समय का है, नाउ वी हैव इन हाँ तमिल, बट दैट वाज आल्सो हाँ रिटन। वो जो श्लोकास हैं,
स्टोरी जो है, हम जैसे बात कर रहे हैं, स्टोरीज यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज। आप उड़िया में लेकिन लिख लो, तमिल आप तमिल हिंदी में लिख, स्क्रिप्ट तो हिंदी पुरानी में है ना, इट तमिल कम्स स्क्रिप्ट तो टू, पुरानी है, आई एम तो नॉट डाउटिंग एविडेंसेस तो दैट, है। आई एम नॉट डाउटिंग दैट। हम्म। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है तमिल एंड उसका, वो दैट इज अननेसेसरी, उतना भी पुराना वो नहीं तो है अलग तमिल। चीज है, वो तो हाँ, अलग वो ही तो बात अलग है, चीज, उस पे भी कर लेंगे, डिबेट उस कर पे लेंगे। कर लेंगे हम, उसको तो एग्रीमेंट ज्यादा आई होंगे उसमें कैन, बस। दैट इज जस्ट वन लाइन आंसर, यू विल अंडरस्टैंड, इट्स वन हाँ, लाइन। वो तो एग्रीमेंट ही हो जाएगी उसमें, तो इसमें डिबेट तो होगा कहने का नहीं। मतलब है कि संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज विच कैन, अच्छा, अब अभी नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट श्लोका एंड मंत्रास, व्हाई, बिकॉज आप देखोगे, अगर आप रामायण पढ़ोगे या महाभारत पढ़ोगे या इवन मंत्र पढ़ोगे, हम्म। एक लाइन के मंत्र में और एक दो कैरेक्टर्स और वर्ड्स के मंत्र में पूरा हम बहुत सारी चीज तो बोल वो तो देते हैं। संस्कृत की एडवांटेज है ना, संस्कृत की एंड वही दैट्स तो है, व्हाई इट इज, कोडिफाइड लैंग्वेज है ना वो। it is scientifically written. I mean, it's NASA's challenge हाँ, that Sanskrit is the इंजीनियर्ड most, लैंग्वेज है, पूरी yeah, इंजीनियर्ड लैंग्वेज है वो। because of वो that, तो मैं आप कह एक रहा हूँ वर्ड, आपको। अगर आप एक वर्ड लिखोगे, and that is this, that's why I'm saying वो जो evolve हो रहा है, that is a different thing. I'm just talking about the how powerful language synth is also. आई थिंक संस्कृत संस्कृत इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कैसे Yeah, आप लैंग्वेज में, मतलब कि आप कोडिफाइड लैंग्वेज, क्योंकि उससे this, पहले भी ये होते हैं, दोहे वगैरह ये सब होते थे, बट अच्छा, एक संस्कृत चीज, इज द मोस्ट एक चीज इंजीनियर्ड में, लैंग्वेज कि जिसमें सबसे ज्यादा कंटेंट आ सकता है, जो एंट्रोपी कहते हैं आप। एंट्रोपी या जो है उसकी एग्जैक्ट, सबसे हाई है संस्कृत की, या इसीलिए उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह भी बोला गया, बट वो एक चीज एक चीज मैं अलग भूल चीज गया, है। that there's a evidence, किस चीज का? there's evidence मैं बताता हूँ आपको। आपको गीता का वो श्लोक पता है ना, यदा यदा हि धर्मस्य, हाँ राइट? हाँ हाँ। गीता में तो 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकास। ओके। Why only that shlok is very famous? Because actually that shloka, not in a very crisp sound, but it was recorded in NASA's satellite, and it's properly documented. रिकॉर्डेड मतलब कैसे, एक बार? Recorded means ये जब इनकी satellite है, you can go and read that. It was हम्म। going it this particular shloka yada yada hi dharmasya. अब ये श्लोक है, अभी everyone know, right? हम्म। Where I think in 1970s or something, they हाँ हाँ। recorded this also. It said that whatever we are saying, we are also talking, right? It will never destroy. It will go and it will roam, अच्छा right? अच्छा, आप कह रहे हो स्पेस से उसको रिकॉर्ड किया हाँ, गया, सेम ये अभी पांच श्लोक हजार साउंड साल को? हाँ, अभी अगर ये श्लोक लिखा गया है 5,500 साल पहले, उस समय में भी हम्म। देयर वाज नो वे टू राइट और समथिंग, उस समय भी स्मृति वाला कॉन्सेप्ट चलता था। हम्म। सो डेफिनेटली, आई मीन, लैंग्वेज तो था ना उस समय संस्कृत। नहीं, तो ये तो जो आप कह रहे हो नासा ने रिकॉर्ड किया, साउंड तो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती बॉस। अरे सर, हाउ विल क्या इट बात कर ट्रैवल? रहे हैं? क्यों साउंड में साउंड को, स्पेस में कैसे साउंड ट्रैवल सिर्फ करेगी? वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, वैक्यूम में सिर्फ लाइट ट्रेवल कर सकता है। तो स्पेस में तो वैक्यूम है, अरे नहीं सर, क्या स्पेस में बात कर वैक्यूम रहे है तो। हैं? वैक्यूम में कौन, किसने कहा इसमें? अगर वैक्यूम रहेगा तो देयर बट इज नो वे वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ क्रिएशन। वैक्यूम में क्रिएशन वी कैन नॉट हैव। नहीं, तो यस, स्पेस में वैक्यूम, तो वैक्यूम है ना। अरे नहीं नहीं सर, क्या बात, वैक्यूम इज अ हाँ, डिफरेंट, हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर अगर आप देखोगे तो वो तो पूरा वैक्यूम है ना। इट्स नॉट अ वैक्यूम। अगर वैक्यूम रहेगा, सो हाउ दैट प्लैनेट्स आर मूविंग? वैक्यूम में कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती ना, ओनली लाइट कैन मूव। वो तो साइंटिफिक No, क्वेश्चन एक मैं खुदा तो ही हुआ साइंस, ना मैं तो अभी आई एम तो। ट्राइंग टू ऐड इट, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद द साइंटिफिक थ्योरी। नहीं, लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा रिकॉर्ड, ये श्लोक कैसे रिकॉर्ड हुआ है, ये इस पे थोड़ा आपको There are a lot of एविडेंस things बैक like करना Om is आपको also एविडेंस से दिखाना पड़ेगा ना। in NASA नासा side की बहुत only. होक्सेस होते हैं ना, अभी अभी कुछ टाइम पहले आया था कि ओम साउंड है, उन्होंने वो सोनोग्राफ को लेके हाँ, एक वेवलेंथ को, लाइट को कुछ उन्होंने चीजें वो हॉक्स किया। है, नो डाउट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, हाँ, बहुत सारी चीजें हॉक्स है। ये वाले को आपको प्रॉपर एस्टैब्लिश, क्योंकि ऐसा श्लोक तो बोला जा नहीं सकता, ये तो मैं आई कैन सर नॉट, जी, आप यू लुकिंग आई एट थिंक दिस एविडेंस मैं तो इसको यदा नहीं यदा मानूंगा। यदा ही धर्मस्य, एक्चुअली द थिंग इज, ग्लानिर्भवति भारतम महाभारत ग्लानिर्भवति। इज वेरी वेरी, इट्स वेरी, व्हाट यू कॉल्ड, recent, incident, if you say in term, if you compare with Ramayana, right? So there are हम्म। many evidences of Mahabharata. बहुत सारा, I'm not going to discuss, नहीं, I mean, एविडेंस, हाँ, तो इस पे हमें करना है, रामायण और महाभारत के एविडेंसेस पे हमें there करना are है many डिबेट। evidences. One of the evidences I'm talking वो about, because एविडेंस it प्रॉपर होने is चाहिए ना, लेकिन it is related to the हार्ड Sanskrit एविडेंस language. होना चाहिए। That's why it's relevant. That's what I'm हाँ, saying. संस्कृत उसको वो कर देगी, वैलिडेट कर देगी, अगर संस्कृत के आपको एविडेंस मिलते हैं
तो तब वो कर पाएगी, लेकिन वो आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे संस्कृत है। हाँ, हालांकि केवल जाते जाते बकचाली देखिए, स्क्रिप्ट जो मैंने फिर कहा कि से। दैट इज प्राकृत ना, वो तो प्राकृत हाँ, है बकचाली भी, अभी तो देखिए, इसलिए ब्राह्मी वो भी नहीं होगा। ब्राह्मी लिपि थी, वी नो, यू नो, आई नो, एवरीवन नोस। बट हाँ अगर आप नाउ, अब यू विल आस्क, गिव मी द, हाँ, हालांकि उसका भी एविडेंस है, बट अभी एविडेंस फॉर एवरीथिंग यू डोंट हैव एविडेंस, राइट? तो नहीं, अब आप, जिसका हाँ एविडेंस, एविडेंस हर चीज का होना जरूरी नहीं है, बट जिस चीज का कंटेम्परेरी का एविडेंस है और वो अगर चीज उससे बेटर है या एडवांस्ड है तो उसका एविडेंस तो होना ही चाहिए ना। फॉर मैं आई एग्जाम्पल। आई आई वेंट टू कुरुक्षेत्र, हरियाणा। हाँ हाँ। There is a Mahabharat Bhavan there. So वहाँ पे थोड़ा, ओके। we believe that Mahabharat happened in Kurukshetra. Right? Someone says it happened in Meerut. But Kurukshetra हाँ normally we so वहाँ पे मैं गया, I went there, and again it's a real story I'm saying. And I see Mahabharat written on, not Mahabharat written by Ganesh ji or Vedar Vyas. कोई हम्म, recent time में लिखा होगा, but that was written on a तालपत्र. ठीक है। I have seen many other talpas also, but Mahabharat was written on ताड़पत्र. उसको वो पूरा अच्छे से प्रॉपर बुलेट प्रूफ ग्लास में ऐसे सेव करके, just people can see that is there, and you cannot take a ठीक है। picture, right? हम्म। And it is written in Sanskrit, and you could only see the first one. So पहला पेज ही देख सकते हैं, नीचे क्या है you never know. Now that Sanskrit you can't हम्म। understand. वो इवॉल्व का बात मैं बता रहा था ना, अभी वो कब हाँ वो लिखा गया है, अंडरस्टैंडिंग या इट इज अंडरस्टैंडिंग, मैं तो सेड कि वो संस्कृत भी नहीं करिए, समझ पाऊँ, मैं तो किसी फॉर्म में शायद संस्कृत ना समझ पाऊँ। वहां पे पढ़ वहां पे सकते हैं लिखा था बट। कि इट इज, आई थिंक 400 प्लस इयर्स ओल्ड, वो जो पांडुलिपि है। अच्छा। अब उस अच्छा पांडुलिपि में भी संस्कृत है, एंड पांडुलिपि। यू कैन रिलेट इट, यू कैन अंडरस्टैंड ओके हाँ इट तो इज वो संस्कृत। बात की होगी ना, पांडुलिपि बात की हाँ, होगी ना, हम तो देवनागरी पे ही मतलब है ना, मैं मेन बोलता हूँ वो 400 साल पहले किसी ने उसको लिख के रखा हुआ है, ठीक है, उसमें जो इंक है उसको भी उन्होंने प्रॉपरली प्रिजर्व किया गवर्नमेंट ने। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हम्म से इज दैट इज संस्कृत, यू अंडरस्टैंड दैट इज संस्कृत, हम्म। लेकिन यू कैन नॉट एक्चुअली राइट, इफ यू ट्राई टू रीड इट, वो हम इसलिए नहीं कर सकते कॉमन बिकॉज कॉमन नाउ मैन वी नहीं कर आर, पाएगा, बट कॉमन जो मैन नहीं कर रिसर्च पाएगा, करते हैं लोग, क्योंकि अभी जो हम जो रिसर्च। हम जो कर रहे हैं, अभी हम जो हमारे जो करंट देवनागरी में हम पढ़ते हैं, हम्म। वो उससे अलग है, श्लोक हाँ वही अलग है, है, मैं तो वही कह रहा संस्कृत हूँ वही ना, है, इसमें बट उसमें हाँ, उसमें क्या हम लिख सकते हैं अब। खैर पांडुलिपि तो अभी की ही है, वो तो इस सेकंड मिलेनिया की ही है, तो इसलिए उसका तो कोई काउंटर बन नहीं सकता है। नहीं नहीं, बट बट उतना हाँ फिर भी मेरा ये 400 काउंटर 500 जरूर साल है कि पुराना। देवनागरी का जो मतलब ये हम पूरा जो देवनागरी में जैसे लिख सकते हैं वही सारे मतलब अलंकार, स्पेशली हलंक और ये आपका विसर्ग को हम कैसे लिखेंगे प्रीवियस स्क्रिप्ट्स में, ये हम नेक्स्ट टॉपिक ये रखते हैं। ये तो अभी टाइम प्रीवियस भी हो गया है। स्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे, हाँ श्योर, टाइम भी हो गया। हाँ हाँ So टाइम that हो गया was तो a wonderful discussion यार, थैंक्स फॉर दैट। डिबेट ही था, बट हाँ ये उतना टाइम वैसा नहीं टाइम था, कैसे फायरिंग गया टाइप। पता नहीं चला, थैंक्स राइट, फॉर हाँ इसमें आपको 2 घंटे आपको आप मान लो कि होएगा ही होएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। नाइस नाइस नाइस, एनीवेज लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। श्योर, So guys, thank you so much for watching, and we will continue this debate. Next topic will be, can we write Sanskrit in a pre-Devanagari script, full-fledged Sanskrit? ठीक है. Thank you guys. Bye bye.